forward, we will start with an interesting video that gives you a glimpse into the world of cybersecurity. So sit back, pay attention, and get ready to dive into the exciting domain. So I invited a few of the world's best hackers to try to hack me and show me where my vulnerabilities are. And now I'm going to meet them in Las Vegas for DEF CON, the biggest hacker convention of the year. They're going to hack me using social engineering, which is essentially hacking without any code. They just use a phone and an internet connection. Do you want to do a sample phishing call? What's phishing? Phishing is voice solicitation, and basically what you do is you use the phone to extract information or data points that can be used in a later attack. Let's do it. Who are you going to call? Maybe I'll call your cell phone provider and see if I can get them to give me your email address. I bet they're good. I bet they have my back. But yeah, go for it. I'm going to spoof from your number, so it's going to look like it's calling from you. Okay. Hi, I'm so sorry. Can you hear me okay? My baby, I'm sorry. my husband's like, we're about to apply for a loan and we just had a baby and he's like, get this done by today. So I'm so sorry. I can't call you back. I'm trying to log into our account for uses information and I can't remember what email address we used to log the account. The baby's crying and can you help me? Awesome. In just 30 seconds, At gmail.com. Jessica gets access to my personal email address. Now, if I needed to add our younger daughter on our account so she can call in and make changes, how would I need to go about doing that? You would have to send me a secure PIN through a text message? Yeah, well, the thing is, I don't think I'll be able to receive a text message if I'm on the phone. Oh, I'm not on there either? So I thought when we got married, he added me to the account. Jess uses my girlfriend's name and a fake social security number 5127. to set up her own personal access to my account. Wait, I'm sorry, so there's no password on my account right now? Can I set that up? She even gets the support person to change my password. Thank you so much for your help today. So she just basically blocked me out of my own account. I'll get her fed after this. All right, thank you. Holy shit. So they just gave you access to my entire cell phone account. You're gonna have to go on and change your password now because it's Jess, my name. And all it took was a crying baby and a phone call. Yeah. So, guys, what did you see in that video? Does anyone here wants to tell me? Anyone? Okay, चलो मैं आपको बताता हूँ. So, it's DEFCON. Now, अभी आप सब लोग सोच रहे होंगे कि ये DEFCON क्या होता है? So, DEFCON is the world's largest hacking conference in which all the hackers, security researchers, and the government agencies come together. वहां पे सब लोग आते हैं and they will show you how to break systems in 7 seconds. तो भाई अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा ऐसा होता है. Just think about it. वहां पर आपके these are the most smartest people in the world come here and उनके systems hack हो रहे हैं like some seconds. So what about us? तो हमारा क्या होगा? हमें तो वैसे साइबर सिक्योरिटी के बारे में नॉलेज नहीं है, तो हमारा क्या होगा? आपने देखा कि कैसे उस लड़की ने इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर ली लाइक इन सम सेकंड्स. ऐसे ही हम किसी की भी इंफॉर्मेशन सेकंड्स में रिट्रीव कर सकते हैं. ओके, अब आप लोगों को बचाएगा कौन? सो दैट्स व्हाई वी आर हियर आवर साइबर फिनिक्स क्लब. आज हम आपको बताएंगे कि आप कैसे कैसे इन अटैक से बच सकते हो. ओके, सो फर्स्टली आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज पीयूष. आई एम फ्रॉम CSC डिपार्टमेंट इन माई 3rd ईयर. आज मैं आपको इन सब चीजों के बारे में बताऊंगा, साइबर अवेयरनेस के बारे में बताऊंगा. ओके, तो चीजें स्टार्ट होने से पहले आपको गेम खेलना पसंद है? किन किन को गेम खेलना पसंद है? अपने हैंड रेज कीजिए. कम ऑन यार, थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाओ. ओके, तो अभी हम एक गेम खेलने वाले हैं. उसमें आपको कुछ नहीं करना. यू जस्ट हैव टू रेज योर हैंड if you experience any of these things in your past with you. Okay, so first thing, do you ever receive a message like something
कि आपने एक आईफोन जीता है? Is anyone receive something like that? Raise your hand. Okay. So there are a lot of people here. कभी आपके पास अपने किसी फ्रेंड का मैसेज है, बट वो आपका फ्रेंड प्रिटेंडिंग कि वो आपका फ्रेंड नहीं है, लाइक कोई और आपसे बातें कर रहा है. Does anyone experience that? कभी आपने किसी ऐसे लिंक के ऊपर क्लिक किया है जो आपको बिल्कुल ट्रू लग रहा हो, लाइक बिल्कुल ही, बट क्लिक करने के बाद आपके सिस्टम में मालवेयर, आपका सिस्टम स्लो हो गया हो. Does anyone here? तो आप लोगों ने जैसे कि अपने हैंड रेज किए, सो Unfortunately, many of you don't even know कि आपने ऐसा कभी किया था और ऐसे कोई आपके साथ एक्सपीरियंस आपने किया है. ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि आपके पास ऐसा कोई लिंक आया होगा और आपने उसके ऊपर क्लिक किया होगा फॉर श्योर. तो हाँ, जैसे कि इसकी पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और आपको कई बार पता भी नहीं चला होगा कि आपने ऐसे लिंक्स के ऊपर क्लिक किया है. तो अभी जैसे कि आपने देखा कि ऐसे ऐसे काफी लोगों ने क्लिक किया है. सो इफ यू रेज योर हैंड, सो यू आर ऑलरेडी इन द हैकर्स अप्रोच, कि आप हैकर्स के द्वारा पहले ही टारगेट किए जा चुके हो. सो दैट्स द थिंग नाउ. तो भाई अब हमें वैसे करना क्या चाहिए? आपने देखा कि जैसे साइबर क्राइम्स होते जा रहे हैं, आपने साइबर सिक्योरिटी के बारे में देखा, बट किसी को पता है कि साइबर सिक्योरिटी होती क्या है? व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी? डज एनीवन हियर जो मुझे बता सके कि साइबर सिक्योरिटी क्या होती है? Hacked our systems from? Okay, that's a good point. What's your name? Himanshu. Let's make a huge round of applause for Himanshu. तो हाँ, जैसे कि इन्होंने थोड़ा साइबर सिक्योरिटी के बारे में बताया, ओके, पर उसके पास आने से पहले मैं आपसे कुछ बोलना चाहूंगा. जस्ट आप सोचिए, जस्ट इमेजिन यू आर लिविंग योर हाउस, ओके, विद ऑल द डोर्स वाइड ओपन. आप कहीं भी बाहर जा रहे हो और आपने अपने डोर्स सभी ओपन कर रखे हैं. सो हाउ डू यू फील अबाउट दैट थिंग? आपको कैसा फील होगा? वरी फील होगा, अनसेफ फील होगा, इनसिक्योर फील होगा. सो दैट्स हाउ दीज थिंग्स वर्क्स. अभी हम वैसे साइबर सिक्योरिटी के ऊपर बात करते हैं. तो साइबर सिक्योरिटी इज लाइक ए डोर, इज लाइक ए डिजिटल लॉक, जिसमें क्या होता है कि ऑल द इंफॉर्मेशन जो आपके पास होती है, यू हैव टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द हैकर्स एंड फ्रॉम द डिजिटल वर्ल्ड. So this is cyber security. Cyber security is like to protecting our systems, network and data from the external attacks or from the hackers. Okay? वैसे अभी मैंने यहाँ पे 3 चीजों के बारे में बात की, सिस्टम्स के बारे में, नेटवर्क के बारे में, डाटा के बारे में. कोई मुझे बताना चाहेगा कि ये सब चीजें होती क्या है? Does anyone here? वैसे आपकी एक छोटी सी सूचना है. जो भी बंदा इस सेशन में इंटरेस्ट दिखाएगा उसके लिए एक स्पेशल प्राइज है हमारे लिए. सो अगर आप जितने ज्यादा आप इंटरेक्टिव रहोगे इस सेशन में तो आपको प्राइज मिलेगा. ठीक है? सो प्लीज टेल मी अबाउट दैट. व्हाट इज सिस्टम? एनीवन हियर? ओके, सो आई विल टेल यू अबाउट सिस्टम. इस सिस्टम क्या होता है? सिस्टम इज कॉम्प्रोमाइजेस ऑफ 2 थिंग्स. वन इज हार्डवेयर एंड वन इज सॉफ्टवेयर. आप सभी अपने स्मार्टफोन यूज कर रहे हो, आप लैपटॉप्स यूज कर रहे हो. दिस इज योर सिस्टम. ओके, इफ आई टॉक अबाउट नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क इज नथिंग. इट इज अ कलेक्शन ऑफ आवर इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस व्हिच आर कनेक्ट टू ईच अदर. सो दिस इज आवर नेटवर्क. एंड व्हाट अबाउट डाटा? डाटा का तो बताओ यार कोई. इंफॉर्मेशन. ओके, सो जो भी हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होती है, जो भी हमारे यूजर नेम्स, पासवर्ड, एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जो अपने पास होती है, सो दिस इज आवर डाटा. तो ये अपने डाटा है. ठीक है? तो भाई अभी वैसे साइबर सिक्योरिटी के बारे में आपको पता चलेगा कि क्या क्या होता है. ठीक है? वैसे किसी को साइबर सिक्योरिटी के पिलर्स के बारे में पता है कि जो साइबर सिक्योरिटी के पिलर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? नेटवर्किंग हो गए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. यू आर राइट, बट आई एम आस्किंग अबाउट द पिलर्स. CIA. Okay, that's a good point. What's your name? Shobit. Let's make a huge round of applause for Shobit. So हाँ, जैसा कि इन्होंने बताया CIA के बारे में.
तो वैसे CIA होती क्या है? कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। ओके, तो वैसे इस चीज को समझाने से पहले मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देना चाहूंगा। आपके पास कुछ भी अपनी हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन होगी। ओके, सो व्हाट इट मींस कॉन्फिडेंशियलिटी से? कॉन्फिडेंशियलिटी से मतलब क्या है कि जो भी आपकी हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन है उसको सिर्फ आप ही एक्सेस कर पाओ, और जो आपका डॉक्टर है जिससे भी आपका इलाज चल रहा है वो एक्सेस कर पाए। सो इट इज क्या है? इट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। इफ आई टॉक अबाउट इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी क्या चीज है? इंटीग्रिटी वो चीज है कि कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन में कोई भी छेड़छाड़ ना क्या करे। जैसे आपके पास कुछ भी रिपोर्ट्स वगैरह है, अगर उसमें हल्के से भी माइन्यूट से भी चेंजेस होते हैं, सो आपकी डेथ भी हो सकती है उस चीज से। एंड द थर्ड थिंग इज अवेलेबिलिटी, कि जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है हमेशा आपके पास रहनी चाहिए जब भी आपको उस चीज की जरूरत हो। जरा सोचिए कि आपको कुछ जैसे बीमारी हो गई एंड वो जैसे बीमारी चलती जा रही है, बट आपके पास उस चीज की रिपोर्ट ही नहीं है। सो हाउ डू यू फील अबाउट दैट देन? आप बिल्कुल मरने वाले हो, ठीक है, और भाई डॉक्टर बोल रहा है यार कि तेरे पास तो जैसे इंफॉर्मेशन वगैरह है ही नहीं, तो हम तेरे को कैसे हो जाए? ओके, तो वही बात है कि अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन अपने पास रहनी चाहिए, जो भी अपनी इंफॉर्मेशन है। सो दिस इज आवर CIA. If I talk about in like general terms, confidentiality is only authorized persons can see your data. Integrity is your data will be same and there is no modification in that data. And the availability is your data is always available at any kind of time and at any particular time. Okay, so these are our things. ठीक है, वैसे मैं अब चाहूंगा कि कोई भी तीन लोग ऐसे आप में से खड़े हो। Anyone? This is a task for you. Okay, 1, 2, 3. Okay. फर्स्ट रो, सेकंड एंड थर्ड, आप दोनों बैठ जाइए। हाँ, सो वैसे आप ट्रीट कीजिए कि ये भाई वैसे कॉन्फिडेंशियलिटी है, एंड दिस गाय इज इंटीग्रिटी एंड दिस गाय इज अवेलेबिलिटी। सो व्हाट इफ अगर हम किसी चीज को कॉम्प्रोमाइज कर दें, सो व्हाट विल हैपन? आप इनमें से किस चीज को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो? सॉरी, व्हाट यू से? अगर कोई भी चीज कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो हमें नुकसान होगा या नहीं होगा? होगा। अगर कॉन्फिडेंशियलिटी कॉम्प्रोमाइज होती है तो भी नुकसान होगा, इंटीग्रिटी भी और अवेलेबिलिटी भी। ओके, सो हाँ, हमारा यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि तीनों चीजें हमारे पास रहनी चाहिए, कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। थैंक यू फॉर योर टाइम गाइस, लेट्स मेक ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम। वैसे अभी चीजें स्टार्ट करने से पहले हमारे पास आपके लिए एक नन्ही सी प्यारी सी वीडियो है, आप उस वीडियो को देखिए और मजा उठाइए, एंड देन आई विल आस्क यू समथिंग अबाउट दैट वीडियो। ओके, हाँ जी, हाँ, तो वैसे आपने इस वीडियो से क्या देखा? कोई बताना चाहेगा? कोई भी? जस्ट रेज योर हैंड इफ समवन वांट्स टू टेल। हाँ जी, यस। उसके ऊपर क्लिक कर दिया एंड देन शी इवेंचुअली फॉल्स इनटू द स्कैम। सो वैसे यहाँ पे हुआ कि ये मुस्कान है, ठीक है, मुस्कान किसी भी वेबसाइट पर जाती है, उसको फ्लावर्स पसंद आते हैं। अब मुस्कान को फ्लावर्स इतने पसंद है, वो
पर उसके पास पैसे नहीं है, ठीक है, वो साइट पे जाती है, वो देखती है 10% डिस्काउंट, बट क्या करे, लड़की के पास पैसे नहीं है। देन अगेन नोटिफिकेशन उसके पास आता है, देन अगेन उसने देखा आपके पास 20% डिस्काउंट है, क्यों नहीं, आपके बार उसका मन तो किया, बट अभी भी वो चीज उसके लिए थोड़ी सी हाई थी। अब हैकर्स भी ट्रैक कर रहे हैं कि वो कहाँ पे जा रही है, कैसे कैसे चीजें कर रही है, और हैकर्स को उनके बारे में क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए। तो अब की बार उन्होंने क्या फ्लो किया कि अब की बार उन्होंने क्या कि चलो 50% डिस्काउंट करते हैं और देखते हैं कि वो आएगी या फिर नहीं आएगी। एंड मुस्कान ने क्या किया, शी एवेंचुअली फॉल इनटू द ट्रैप, कि मुस्कान एवेंचुअली ट्रैप में फंस गई एंड द मालवेयर जस्ट एंटर इनटू हर सिस्टम। सो वैसे यहाँ पे कोई मुस्कान है? कोई नहीं है मुस्कान? अच्छा, आप मुस्कान हो, तो वैसे मैं आपसे आशा करूंगा कि आप कभी भी इस ट्रैप में ना फंसे, बिकॉज क्या होता है कि थोड़ा सा हमारी टेंडेंसी होती है स्पेशली लड़कियों की कि जब वो डिस्काउंट देखती है तो हाँ वो ऑटोमेटिकली थोड़ा अट्रैक्ट हो जाती है। सो दैट्स व्हाई। ओके, नाउ वैसे अभी अपन ने बात की कि साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, बट द थिंग इज कि ये मैटर क्यों करती है, व्हाई डज साइबर सिक्योरिटी मैटर्स। आप सिर्फ एक अपना सिनेरियो सोचिए कि जिसमें क्या हो, एक सिनेरियो है कि आपका बैंक अकाउंट आपका हैक हो जाए, आपकी प्राइवेट फोटो जो भी आपकी है वो लीक हो जाए। सो हाउ डू यू फील अबाउट दैट थिंग, और आप फिर उसके बारे में आप क्या करेंगे। सो दिस इज व्हाई cyber security is here. It will protect you from such attacks. Okay. Now, firstly, I want to talk about personal data. Like cyber security protects your personal data, any kind of your image, any kind of usernames, passwords, everything, whatever it is protected by cyber security. Okay. Second thing is businesses. आपको पता है आजकल कितने businesses हो रहे हैं, अलग अलग साइट्स बन रही है। सो साइबर सिक्योरिटी एक काफी डिफरेंट रोल प्ले करती है इनको कि जो भी कस्टमर की इंफॉर्मेशन है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, और बिजनेसेस वगैरह का लॉस ना हो जाए, सो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए साइबर सिक्योरिटी होती है। वैसे आपने कभी बग बाउंटी का नाम सुना है? किसी ने नाम सुना है बग बाउंटी का? या व्हाट इट इज? हाँ, वैसे आप माइक ऑन कर सकते हो और माइक ऑन करके बोल सकते हो। ओके, ठीक है। तो हाँ, इन्होंने जैसे बताया कि किसी भी सिस्टम के अंदर बग फाइंड आउट करना एंड देन उसके फिर अपन को कुछ ना कुछ मतलब अमाउंट मिलती है, ठीक है। तो बग बाउंटी क्या है, हमारी वेबसाइट से, हमारे ऐप से डिफरेंट। तो क्या होता है कि हम जैसे साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हुए या फिर जो नए बंदे हैं, वहां पे जाके वेबसाइट्स के अंदर जाते हैं, ऐप्स के अंदर जाते हैं, ठीक है। वहां पे जाके हम बग्स वगैरह फाइंड आउट करते हैं, या वी कैन गेट सम अमाउंट ऑफ मनी फॉर दैट। भैया चलो ये बात तो ठीक है कि यार पैसे वैसे मिलते हैं, बट क्या साइबर सिक्योरिटी में करियर भी है? जी हाँ, साइबर सिक्योरिटी में काफी अच्छा करियर है, एंड यू मस्ट नो अबाउट दैट कि अभी जो जॉब्स बढ़ने वाली है वो साइबर सिक्योरिटी की काफी ज्यादा अमाउंट में बढ़ने वाली है। लाइक जो नया बूम आने वाला है इंडिया में, वो साइबर सिक्योरिटी का आने वाला है। सो यू मस्ट गो इनटू दैट सिस्टम। हमारे देश में ऐसे लोगों की काफी जरूरत है जो कि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें जानते हैं, बिकॉज एट दैट टाइम, अभी की मैं बात कर रहा हूं, अभी इंडिया में काफी कम लोग हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज द नीड ऑफ द हावर। ओके, नाउ आई विल टॉक अबाउट द नेशनल सिक्योरिटी, कि नेशनल सिक्योरिटी में भी मतलब साइबर सिक्योरिटी का एक मेन रोल होता है, लाइक टू प्रोटेक्ट एनी काइंड ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन, कोई भी अपने गवर्नमेंट के लॉस वगैरह हुए, लाइक एनीथिंग, सो इट इज प्रोटेक्टेड बाय आवर साइबर सिक्योरिटी। ओके, वैसे अभी मेरे पास एक एक्टिविटी आप लोगों के लिए, मैं आपको वैसे 2 इमेज दिखाऊंगा, ठीक है, एंड यू हैव टू फाइंड द रियल एंड द फेक वन फ्रॉम दैट। सो दिस इज योर वर्क फॉर टुडे। यहाँ पे एक रियल ईमेल है और एक फेक ईमेल है। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं कि देखते हैं कि कौन इसके अंदर मतलब खामियां पता लगा सकता है कि इसके अंदर क्या क्या दिक्कतें हैं दोनों में इसमें। प्लीज, ओके, सो द टाइम ओवर्स नाउ। तो किस किस में वैसे पता लगा, प्लीज रेज हैंड कीजिए। ओके, या व्हाट अबाउट यू? ओके, सो राइट वन इज रियल, ठीक है। वैसे वो आपको कैसे पता लगा कि राइट वन रियल है? First of all, the email is hidden for the privacy reason, and the link is not given. Okay, and the link is not given. What? No, okay, go on. And the box is
Okay. This can be a phishing. So what's your name, by the way? Prajwal. Prajwal. So makes a huge round of applause for Prajwal. What about you? इस साइड वाले में अनयूजुअल लिखो, उस साइड वाले में अर्जेंट लिखो, इस वजह से भी उसके ऊपर ज़्यादा Yeah, there is always a urgency factor in that thing. कोई और वैसे कुछ और चीज किसी ने नोटिस की यहाँ पे? Yes, you. First link contains HTTP. Sorry, what you say? HTTP. HTTP. Where are you seeing it? Okay, yeah, HTTP. Yeah, that's a good point. और कोई? हाँ, मेल गलत है. ये बात किसने बोली वैसे? Okay, you are right. So हाँ, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, अलग-अलग चीजें लोगों ने बताई. तो हाँ, चलो मैं भी कुछ चीज वैसे बताता हूँ. कभी भी मेल की शुरुआत होती है. So firstly, you have to check the sender's address. कि वो एड्रेस मतलब कौन भेज रहा है, वो ईमेल कौन भेज रहा है. अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, अगर आपके आंखें ठीक है, तो आपने पहले ये चीज देखी होगी कि जो माइक्रोसॉफ्ट की स्पेलिंग है वो पहले ही गलत है. What are you seeing it? RN in it, and in it you will see N. Okay. So Microsoft की spelling पहले ही गलत है. So this is the first difference you can see in between the real and the phishing email. Sorry, what do you say? या लाइव की स्पेलिंग भी गलत है. सो हाँ, तो ऐसे जैसे कि एंड द सेकंड फैक्टर आई वांट टू टेल यू, जैसा कि ये भाई बोल रहे हैं कि जो ग्रामेटिकल फैक्टर होता है वो भी काफी जैसे मतलब मेजर रोल प्ले करता है. ग्रामेटिकल फैक्टर में क्या, जैसे कि स्पेलिंग्स वगैरह की मिस्टेक्स वगैरह हो, ठीक है, तो वो चीजें भी फेक ईमेल को दर्शाती है. ठीक है. एंड द थर्ड थिंग जो कि इन्होंने नोटिस की थी कि जो HTTP है, HTTP is really unsafe. So you don't have to really click on these kind of links in your real life. और हाँ, जैसे कि भाई ने बताया था कि जो भी माइक्रोसॉफ्ट से चीजें आएंगी ऐसे लिंक में नहीं आएगी, वो एक प्रॉपर जैसे डब्बे में आएगी एंड देन यू विल क्लिक ऑन दैट. इसमें एक छोटी सी चीज और है. एक किसी ने कैलेंडर की स्पेलिंग वैसे नोटिस की हो कि दोनों में जो कैलेंडर की स्पेलिंग है वो भी दोनों में अलग है. ठीक है. तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट. तो भाई वैसे अपन ने बात की कि ठीक है, ये अपना रियल नेम, ये अपना रियल ईमेल हो गया और ये अपना फेक ईमेल हो गया. ठीक है. वैसे ठीक है, अगर आपके सिस्टम में कोई भी अटैक आता हो, कोई भी साइबर अटैक आता हो, तो वो साइबर अटैक्स कौन से टाइप के होते हैं. ठीक है. अब हम इसके बारे में बात करेंगे और उन अटैक से कैसे बचा जा सकता है. ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे. ओके, सो आवर फर्स्ट साइबर थ्रेट इज फिशिंग. किसी को पता है वैसे फिशिंग क्या होती है? Like any word coming in your mind after listening the phishing? Yeah, you. Phishing का मतलब कि कोई फेक जैसे ईमेल हो गया या लिंक स्पेंड किया जाता है किसी और को, हम मतलब रिप्रेजेंट करते हुए और उस पर क्लिक करवाया जाता है जैसे करते हैं. Okay, yeah, that's a good point. Let's make a huge round of applause for him. जी, आप क्या बताना चाहेंगे? Phishing के अंदर ऐसा होता है कि आपके पास फेक ईमेल साइट या बहुत सारी चीजें लिखा हुआ है. Okay. और मैसेज की साइट. Okay. या यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप देख सकते हो. So phishing is like कि आपके पास फेक ईमेल आएगी, मैसेजेस आएंगे एंड दैट विल ट्रिक यू. जैसा कि हमने अपने पिछले एग्जांपल में देखा कि एक आपके पास रियल ईमेल था और एक आपके पास फिशिंग ईमेल था. बट उसमें जैसे उसमें लिंक वाला फैक्टर भी था कि वो लिंक HTTP से स्टार्ट हो रहा था. सो इट इज एग्जांपल ऑफ लाइक फिशिंग ईमेल कि ऐसे ईमेल आपके पास आ सकते हैं एंड यू हैव टू टेक केयर कि आप उन चीजों पे क्लिक ना करें. वैसे अब इन चीजों से वैसे बचने के लिए क्या किया जा सकता है? वैसे स्पॉट ऑन के लिए क्या किया जा सकता है? मैंने क्या पॉइंट बताए, कोई समराइज करना चाहेगा अबाउट कि जो ईमेल्स आई है कि उनको स्पॉट कैसे किया जा सकता है कि वो फेक ईमेल है या फिर रियल ईमेल है? यस. ओके. ओके, सेंडर्स एड्रेस. अगर कोई वेबसाइट करेंगे तो वो चेक करेंगे. ओके. लेट्स मेक अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम. तो हाँ, वैसे हम इसमें 3 चीजें मेन जैसे चेक करते हैं. जो भी सेंडर्स एड्रेस है कि वो चीजें कहाँ से आ रही है उस चीज को चेक करना. कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वगैरह हो उस चीज को चेक करना. एंड द थर्ड पॉइंट इज अबाउट अर्जेंसी. ठीक है, कोई भी अगर अर्जेंसी वाली ईमेल वगैरह हो तो हाँ, उसके ऊपर प्लीज क्लिक ना करें, अदरवाइज यू विल बी इन सीरियस ट्रबल देयर. ओके.
अब हम वैसे बात करेंगे फिशिंग के बारे में, हमने बात कर ली, ठीक है। अब हम बात करेंगे मालवेयर के बारे में कि मालवेयर क्या होता है, ठीक है। मालवेयर it is compromises of like many things. You can say virus, spyware, trojans. These are all kind of malware. अब malware क्या करता है? जस्ट सपोज कीजिए कि आप कोई भी मूवी डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है, और वो मूवी आपने डाउनलोड की एंड देन आपका सिस्टम बिल्कुल अचानक से आपका सिस्टम स्लो हो गया, आपकी फाइल्स इंक्रिप्ट होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ मालवेयर कि कैसे मालवेयर एक्ट करता है। तो भाई अब मालवेयर से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? किसी को पता है कि मालवेयर से कैसे बचा जा सकता है? यस यू फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीवायरस वगैरह, ओके और कभी कोई चीज डाउनलोड करे तो उसका वो देखना है कि कहाँ से डाउनलोड हो रही है। ओके और डॉट जो भी हमें चाहिए, जैसे हमें कोई वीडियो डॉट एमपी करनी है, डॉट कौन सा होता है वो एमवी होता है, डॉट एमपी अगर कोई गाना, मतलब जो भी है हमें चेक करना है, एक्सटेंशन चेक करना है उसका, और कोई भी ऐसे फिश एक्सटेंशन है उसको डाउनलोड नहीं करना और एंटीवायरस करना है। ओके और उसके ओके जैसा कि इन्होंने बताया कि कुछ कुछ चीजों का ख्याल रखना है, तो हाँ इन्होंने बिल्कुल सही बताया कि फर्स्टली वी हैव टू चेक कि जो भी हम मूवी वगैरह डाउनलोड कर रहे हैं वो एक ट्रस्टेड साइट से हो, ठीक है। सो फर्स्टली यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट एंड देन यू कैन सी सम डिफरेंट थिंग्स कि आप एंटीवायरस का यूज कर सकते हो। पर चलो भाई ठीक है, हमने इन चीजों का ख्याल रखा, पर हमने गलती से उसके ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है, तो अब क्या? अब उससे बचने के लिए आप क्या करोगे? आप आप पहले खड़े होके बोलिए आप जी। ओके बिल्कुल या ओके ओके या लेट्स मेक यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। तो हाँ, जैसे कि हमें कुछ कुछ चीजों का ख्याल रखना है। अगर मालवेयर अपने सिस्टम में आ भी गया, फिर भी अपन को कुछ चीजों का ध्यान रखना है। फर्स्टली वी हैव टू मेक श्योर कि जो भी डिवाइसेस अपने सिस्टम से कनेक्टेड है उनको हम रिमूव कर दें। ओके, किसी भी चीज का फॉर्म आ रहा है, किसी भी चीज का लॉगिन फॉर्म आ रहा है, सो प्लीज डोंट एंटर एनी काइंड ऑफ क्रेडेंशियल्स इनटू दैट फॉर्म। ओके, एंड द थर्ड पॉइंट आई वांट टू से कि ठीक है, जैसे कि आ गया, सो आप आईटी सपोर्ट की हेल्प ना लीजिए, आईटी सपोर्ट आपको हेल्प करेगा। फोर्थ पॉइंट इज आपके फोन में कोई ना कोई अच्छा एंटीवायरस होना चाहिए, एंड देन एक बार फोन को एयरप्लेन मोड पे लगा के अच्छी तरीके से एंटीवायरस स्कैन कीजिए, एंड हाँ, उससे आप फिर अच्छी तरीके से आप प्रोटेक्ट आप रह पाएंगे। ओके, सो दीज आर द थिंग्स यू शुड टेक केयर ऑफ। नाउ आई वांट टू आस्क यू अबाउट रैंसमवेयर। रैंसमवेयर क्या होता है? हमारे डाटा चोरी करके हमें रुपयों के लिए। अरे वाह, सही बात है इनकी। आपका नाम क्या है? पूनम। पूनम, ओके। सो पूनम ने जैसे कि बात की यार, लक्ष्मी के लिए हाँ, तो जैसे कि पूनम ने जैसे बात की कि हाँ, कि अपना ही डाटा चोरी करके और हम ही से जैसे फिनौती मांग रहा है, हम ही से पैसे मांग रहा है, सो वो है हमारा रैंसमवेयर। ये भी एक तरह का मालवेयर। अब इसमें हो क्या जाता है, जो भी अपने सिस्टम की फाइल्स वगैरह है वो अच्छी तरीके से इंक्रिप्ट कर देते हैं। वो इंक्रिप्ट करके वो फिर बोलते हैं कि या इफ यू वांट्स द फाइल यू नीड टू एंटर द पासवर्ड फॉर दैट, और उस पासवर्ड के लिए फिर वो आपसे मांगते हैं पैसे। वैसे पहले मैं आपको इंक्रिप्शन का, जैसे मैंने आपको बताया, इंक्रिप्शन में क्या होती है कि आप किसी भी फाइल को एक्सेस नहीं कर पाते हो, ठीक है। सभी की सभी फाइल्स आपकी प्रोटेक्टेड रहती है, उसके लिए आपको एक्सेस करने के लिए किसी भी टाइप का पासवर्ड वगैरह चाहिए उन फाइल्स को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। सो ये अपना क्या है, रैंसमवेयर है। तो अब भाई क्या होगा कि ये आप में से कौन मतलब ऐसा करेगा कि ठीक है यार, अब मुझे फाइल्स वगैरह मतलब काफी जरूरी है, ये फाइल्स ठीक है मेरे लिए, तो मैं ठीक है मैं अटैकर को पैसे दे देता हूँ। इतना मतलब कौन यहाँ पे सोच रहा है कि वो ऐसी चीजें करेगा? ऐसा कोई भी नहीं करेगा, बट हम घबराहट में कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं। सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ इट कि हम किसी भी अटैकर को कुछ पैसे वैसे ना दे तो वो अच्छा रहेगा, बिकॉज वी नेवर नो कि अगर उन्होंने पैसे ले भी लिए तो वो हमारी इंफॉर्मेशन, हमें पासवर्ड्स वगैरह वापस हमें दे देंगे, ठीक है। सो यू नीड टू मेक श्योर, जो मैंने आपको पहले पॉइंट्स बताए थे
आप उनका ख्याल रखिए, ठीक है। किसी भी IT सपोर्ट पर्सन से आप बातचीत कीजिए एंड देन ही विल टेल यू अबाउट द सॉल्यूशन अबाउट ऑफ इट, ठीक है। द फोर्थ थिंग इज सोशल इंजीनियरिंग, ठीक है। अब सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है? किसी ने वैसे जो स्टार्टिंग में वीडियो चली थी, किसी ने देखी वो? तो भाई उसमें वैसे कुछ आपने देखा कि कुछ सोशल इंजीनियरिंग की चीज कुछ आपने देखी वैसे इसमें वीडियो में? कोई बताना चाहेगा? यस। उसके अंदर हमने देखा था कि जैसे वो उसने उसकी वाइफ का रोल प्ले किया था कि मैं वाइफ बोल रही हूँ ताकि वो उसके वेरीफाइड अकाउंट डिटेल्स फोन की। तो ऐसे ही सोशल इंजीनियरिंग होती है, वो हमारे किसी रिश्तेदार या हमारे जानने वाले की एक्टिंग करते हैं, फिर हमसे वो इंफॉर्मेशन देते हैं हमारे बारे में, हमारे डाटा से। So let's make a huge round of applause for her. बिल्कुल इन्होंने वैसे बिल्कुल ठीक बताया। इसमें क्या होता है सोशल इंजीनियरिंग में, ये थोड़ी सी फिशिंग से जैसे डिफरेंट है। इसमें क्या होगा, इसमें वी आर हैकिंग द ब्रेन्स ऑफ द ह्यूमंस। इसमें हम ह्यूमंस को मैनिपुलेट किया जाएगा। और भाई अब ह्यूमंस को मैनिपुलेट करने का मतलब क्या है? जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि जैसे उस लड़की ने कैसे उस लड़के की इंफॉर्मेशन लाइक इन सम मिनट्स कैसे मतलब निकलवा ली थी, ठीक है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सोशल इंजीनियरिंग कि कैसे किया जा सकता है। आपके पास कई बार कॉल्स आए होंगे, किसके लिए आए होंगे? किसी भी टाइप के OTP के लिए कि आपका बैंक अकाउंट जैसे हैक है ना हो चुका है और अगर आपको वो हैक होने से बचाना है, सो यू कैन शेयर द OTP जो आपके फोन में आया है, ठीक है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ सोशल इंजीनियरिंग अटैक कि ऐसे फोन कॉल्स आपके पास आ सकते हैं जिसमें आपको ट्रिक किया जाएगा और आपको उस चीजों से बचना पड़ेगा, ठीक है। सो अब इससे बचने के मतलब उपाय क्या है? सोशल इंजीनियरिंग से हम कैसे मतलब बच सकते हैं? तो वैसे सोशल इंजीनियरिंग से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? फर्स्टली वी हैव टू अवेयरनेस अबाउट दिस थिंग्स कि हाँ ऐसी ऐसी चीजें अपनी रियल लाइफ में होती है, तो हाँ हमें चौकन्ना उसके बारे में रहना पड़ेगा। सेकंड थिंग अबाउट इज कि OTP वाला फैक्टर कि कभी भी किसी भी अननोन पर्सन के साथ OTP बिल्कुल भी शेयर ना करें। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रोटेक्ट फ्रॉम दीज काइंड ऑफ सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स। मेरे पास वैसे आपके लिए एक क्लिप है, एक छोटी सी क्लिप है जो कि विशिंग के बारे में है, जो मैं आपसे जानना चाहूंगा। यस, प्ले द क्लिप कार्तिक। मिली महत्वपूर्ण जानकारी। आपके व्यक्तिगत क्रेडेंशियल्स का बार बार डार्क वेब पर उपयोग किया जा रहा है। यदि आप 2 घंटे के भीतर इसकी सूचना नहीं देते हैं तो हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। अधिक जानकारी के लिए 9 दबाएं। Important message from Cybercrime Department. Your personal credentials have been used repeatedly on the dark web. If you do not report it within 2 hours, legal action will be taken against you. For more information, press 9 to be transferred. तो हाँ, जैसे कि आपने अभी इसमें देखा, तो ये वैसे किस टाइप का अटैक है? कोई बता सकता है? ओके, सो ये फिशिंग अटैक है, बट ये फिशिंग में भी एक कैटेगराइज थिंग है। किसी को पता है? ओके, इट इज फिशिंग। हाँ, किसने बताया वैसे? ओके, लेट्स मेक ए ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर। तो हाँ, ये अपना फिशिंग अटैक है और इस अटैक में वैसे हुआ क्या? कोई बताना चाहेगा? जी हाँ, इसमें आपको डराया जा रहा है, इसमें आपको बोला जा रहा है कि डार्क वेब पे आपके पासवर्ड्स वगैरह खुलेआम घूम रहे हैं, तो अगर आपको बचना है तो कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो हाँ, अभी जैसे कि आपने देखा कि ऐसी ऐसी चीजें होती है, तो पहली बात है कि आपको घबराना नहीं है। जस्ट काम योर माइंड। कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो रही है, कोई बात नहीं, फोन स्विच ऑफ कर दो, फोन को एयरप्लेन मोड पे डाल दो और हाँ बैठ जाओ, एंड देन यू विल टॉक लाइक सम IT एक्सपर्ट देयर, ठीक है। उनसे ऐसी बातचीत करो। ओके, नाउ मेरे पास वैसे ओके, फर्स्टली हम वैसे पासवर्ड्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। वैसे कितने लोग हैं यहाँ पे जो कि रीयूज्ड पासवर्ड्स यूज करते हैं अपने अकाउंट्स में? कितने लोग हैं? अरे ऑनेस्टली बताओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है यार, बिल्कुल। अरे वैसे मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल यूज द रीयूज्ड पासवर्ड्स इन देयर अकाउंट्स। तो क्या ये करना सही है? नो, बट व्हाई? जी याद नहीं रख पाते, वो भी एक चीज है, उसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, बट ऐसा रखना बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
अगर आप रीयूज पासवर्ड से यूज करते हो, अगर आपका एक भी अकाउंट आपका कॉम्प्रोमाइज हुआ, सो देयर इज ऑलवेज ए हाई चांस कि आपके बाकी अकाउंट्स भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे. सो यू रियली नीड टू टेक केयर ऑफ दैट थिंग कि आप रीयूज पासवर्ड्स का आप यूज ना करो. मैंने कई बार लोगों को देखा है जो वो पासवर्ड्स यूज करते हैं वो काफी सिंपल होते हैं और उन्हें गैस करना काफी आसान होता है. इफ ए पर्सन हु हैव डिसेंट नॉलेज इन साइबर सिक्योरिटी, अगर वो उनका पासवर्ड क्रैक करने की कोशिश करे तो हाँ, वो बंदा उनका पासवर्ड कुछ मिनटों में क्रैक कर सकता है. इसलिए इट इज ऑलवेज रेफरेबल टू यूज सम लॉन्ग पासवर्ड्स इन विच दिस काइंड ऑफ डिटेल्स शुड बी इंक्लूडेड इन इट. उसमें अपर केस, लोअर केस लेटर्स, ठीक है, नंबर्स, सिंबल्स, हर कोई मतलब स्पेशल कैरेक्टर, हर कोई कैरेक्टर वैसे यूज हो. सो हाँ, इट मेक्स अ वेरी गुड एंड ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड. ओके, सो यू रियली नीड टू टेक केयर ऑफ दैट. अभी भाई किसी ने बताया कि यार पासवर्ड याद रखने में काफी दिक्कत होती है, ठीक है, तो उसका क्या इलाज हो सकता है? वी हैव टू यूज पासवर्ड मैनेजर फॉर दैट. आपके फोन में जैसे कुछ अच्छे पासवर्ड मैनेजर होते हैं, आप उनका यूज कर सकते हो टू प्रोटेक्ट योर पासवर्ड्स. आप वहां पर अपने पासवर्ड स्टोर कर सकते हो, ठीक है. सो दिस इज हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योर पासवर्ड्स. वैसे इसमें एक चीज और है कि ठीक है यार, हमारे पास कोई पासवर्ड मैसेंजर नहीं है, ठीक है, और वो चलो पासवर्ड मैनेजर भी मतलब वैसे किसी ट्रस्टेड सोर्स से होना चाहिए, बट अगर उसके भी वैसे कुछ हैक होने के चांसेस रहते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है, कोई भी आपकी एक प्राइवेट नोटबुक हो जिस पे सिर्फ आपका ही एक्सेस हो, सिर्फ इसको आप ही एक्सेस कर पाओ, तो हाँ, आप अपने पासवर्ड्स वहां पे लिख सकते हो, ठीक है, और इससे आप मतलब काफी साइबर अटैक से आप बच सकते हो. वैसे आपको क्या लगता है कि मैं अब तक साइबर अटैक्स की बातें कर रहा हूं, आपको क्या लगता है कि कितने % जो साइबर अटैक्स है वो ह्यूमन एरर की वजह से होते हैं? जस्ट रेज योर हैंड लाइक एनी ऑफ द गैसेस. गैस कीजिए कोई रैंडम नंबर. जी, 80%. एनीवन एल्स? 70%? 99%. 99%? और कोई? पूरा 100%. ओके, तो वैसे आपको जान के ताजुब होगा कि 95% ऑफ अटैक्स, ऑफ साइबर सिक्योरिटी अटैक्स, जो कि ह्यूमन एरर की वजह से होते हैं. लाइक कि अगर आप इन छोटी छोटी चीजों का अगर ख्याल रखते हो तो आप 95% अटैक से आप ऑलरेडी आप प्रोटेक्टेड हो. सो यू रियली नीड टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स इन योर लाइफ. ओके, अभी मेरे पास आपके लिए एक वीडियो है, आप उस वीडियो को देखिए और फिर बताइए कि उस वीडियो में हो क्या रहा है. ओके. The risk for the public networks is because they're out there, they're open, unencrypted, an attacker can join it just as easily as you can. And that's exactly what we did with the help of hacking expert Steve Walker. I can see all the different networks out there, all the different clients, and which one do I want to look like. Wicked free Wi-Fi is available here on the Boston Common, and Steve created his own imposter version with a laptop and small device anyone can buy online. And that didn't take too long. No, it didn't take long at all. Anyone closer to his signal than the one the city is blasting out will only see the fake Wicked free Wi-Fi option. And if your device connected to the real system in the past, it could even automatically join this rogue Wi-Fi network. So you just called it the same thing? Yeah. Or is there any slight difference? Nope. While the name is exactly the same, the login page is different. And that's my login page that I gave you. For Steve's fake Wi-Fi, he created these two phishing links to Facebook and Gmail. I could sign in here and now you know my Facebook password. That's right. Password was Hager. Yeah, C. Hager, that's my name. Steve is seeing every letter as I type it. Could you be a fake business and take someone's credit card information? Yep. And even if you don't fall for the links, once you're connected to the imposter Wi-Fi, he knows your every online move. You're going to Google. Anything I'm reading, you can see what I'm interested in. Yep. This vulnerability can be exposed through any free and open Wi-Fi at coffee shops, stores, airports, hotels, anywhere. There's always a risk. ओके, सो हाँ, जैसे कि आपने वीडियो को देखा, तो आपको क्या लगा, मतलब इस वीडियो में हुआ क्या है? कोई बताना चाहेगा? अरे हैंड रेज कीजिए यार और फिर बोलिए यार, ठीक है. हाँ, आप बताइए वैसे पहले. माइक में बताइए, माइक में थोड़ा सा. ओके, आप ऐसे ही बोलिए, कोई बात नहीं.
ओके, फ्री वाईफाई कनेक्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आप ओके, दैट्स अ गुड थिंग। एंड व्हाट अबाउट यू? हाँ, या ओपन सोर्स वाईफाई कनेक्ट किया, इसलिए जो भी मोबाइल का डाटा था वो ट्रांसफर हो गया, उसने रिट्रीव कर लिया। ओपन सोर्स वाईफाई कनेक्ट किया, उसकी वजह से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो गई, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट यू? हैकर्स जो है ना वो प्राइवेट पब्लिक में जाके अपना फ्री वाईफाई प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि वो दूसरों की इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें। लेट्स मेक अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ देम। उन्होंने काफी अच्छी कोशिश की। तो वैसे यहाँ पे क्या हुआ, कोई भी जैसे एक जैसे बंदा था, ठीक है, पहले से ही कोई जैसे फ्री वाईफाई वहां पे लगा हुआ है, एंड उसने उसी नेम का कोई एक और फ्री वाईफाई लगाया, ठीक है। अब उस फ्री वाईफाई ने किया क्या, उसमें भी अपना एक लॉगिन पेज था। जो भी लोग पहले से जो रियल वाईफाई है, अगर उसके कॉन्टेक्ट में पहले से है तो वो इस वाईफाई से अलग से मतलब कनेक्ट अपने आप हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन वगैरह डाली, लॉगिन करके उनके पास एक्सेस था फेसबुक का, जीमेल का। लोगों ने जैसे जैसे अपनी इंफॉर्मेशन डाली, तो जैसे इन भाई साहब के पास फिर वो इंफॉर्मेशन आने लगी, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज हैपन। कभी वैसे किसी ने पब्लिक वाईफाई पे कुछ भी ट्रांजैक्शंस वगैरह की है? कभी भी अपनी हॉस्टल की फीस की पेमेंट हो, वो हो। सो इट इज हाईली प्रोहिबिटेड टू यूज दैट काइंड ऑफ थिंग इन केस ऑफ पब्लिक वाईफाई। पब्लिक वाईफाई में कभी भी अपन को ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन अपन को शेयर नहीं करनी है। किसी भी टाइप की ट्रांजैक्शंस वगैरह हो, कभी भी इन चीजों का अपन यूज नहीं करना है कोई भी पब्लिक वाईफाई में। ओके, सो दिस इज आवर मेन पॉइंट हियर कि पब्लिक वाईफाई में, ठीक है, जो छोटी मोटी चीजें वो आप चला लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट जो भी आपके जो जरूरी टास्क वगैरह है, कोई भी ट्रांजैक्शंस वगैरह है, किसी भी चीज के अंदर यूजर ने पासवर्ड आप डाल रहे हो, सो आपको उसका ख्याल रखना है कि आप कुछ ऐसी चीजें आप ना करो। सो इट विल बी मच बेटर देन। ओके, अभी वैसे हमने जैसे कि अलग अलग वेज के बारे में बात की, तो अभी जैसे कुछ वेज और है। जैसे कि पहला वेज है इनेबल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ठीक है। अब भाई ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है? फर्स्टली ऑथेंटिकेशन क्या होता है? ऑथेंटिकेशन एनीवेयर, एनीवन? यस यू? ऐसा भी जिससे जो भी हमें प्रोवाइडर है, कोई भी हमारा इंटरनेट प्रोवाइडर वगैरह है, फिर रिटेल प्रोवाइडर है, वो ये ऑथेंटिकेट करता है, ये पता लगाता है कि जो बंदा सामने से रिक्वेस्ट भेज रहा है यही ऑथेंटिक है। ओके, एनीवन एल्स? ठीक है। सो ऑथेंटिकेशन इज व्हाट? ऑथेंटिकेशन क्या है कि कोई भी जैसे कि अपनी जो भी ऑथेंटिटी है उसको जैसे वेरीफाई कराना। जैसे व्हेन यू यूज योर यूजर नेम एंड पासवर्ड इन एनी काइंड ऑफ थिंग, सो इट इज आवर ऑथेंटिकेशन। अभी क्या फिर हो सकता है कि आपके फ्रेंड के पास भी वो यूजर नेम पासवर्ड किसी तरह आ जाए, ठीक है। तो उससे बचने के लिए आपके पास है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, और वी कैन से इट मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, कि इट इज मोर देन वन काइंड ऑफ ऑथेंटिकेशन। जैसा कि आपने ईमेल्स वगैरह में देखा होगा, जब भी आप ईमेल आईडी वगैरह कुछ भी चीजें बनाते हो, ठीक है, आप अपने यूजर नेम से पासवर्ड से लॉगिन कर लेते हो, एंड देन यू कैन गेट सम सर्टेन काइंड ऑफ नंबर इन योर ईमेल अकाउंट कि वेरीफाई करने के लिए कि आप वही एंटिटी हो, ठीक है। सो दिस इज आवर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। वैसे मैंने फ्री वाईफाई में एक पॉइंट बताना मैं वैसे भूल गया, कभी भी कुछ भी ट्रांजैक्शंस वगैरह करनी हो, सो ऑलवेज यूज ए वीपीएन। वैसे किसको पता है वीपीएन क्या होता है? जी बताइए। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। तो वीपीएन का आप यूज कीजिए, क्योंकि वीपीएन से क्या होता है कि सामने वाला ट्रैक नहीं कर पाता है कि किस साइड से ट्रैफिक आ रहा है। एक अपना अटैक होता है मैन इन द मिडल अटैक, ठीक है। जो मैन इन द मिडल अटैक में क्या होता है, जो भी अपनी रिक्वेस्ट वगैरह होती है वो इंटरसेप्ट हो जाती है, ठीक है, जिससे कि उन्हें जो भी अपन काम कर रहे हैं ना उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन उनके पास चली जाती है, ठीक है। सो दिस इज आवर वीपीएन। ऑलवेज वेरीफाई द ईमेल्स एंड द लिंक्स। कोई भी ईमेल है, कोई भी लिंक्स है, उनको अपन को वेरीफाई करना है कि वो कहां से आ रही है, कहां से नहीं आ रही है। थर्ड पॉइंट इज ऑलवेज यूज द सिक्योर वेबसाइट्स। जैसा कि भाई ने बताया था कि अपने पास कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, HTTP, HTTPS, ठीक है। ऑलवेज मेक श्योर कि आप किसी भी वेबसाइट पर जा रहे हो तो वो HTTPS की वेबसाइट होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी भी HTTP की वेबसाइट पर जा रहे हो, सो देयर इज ए हाई चांस कि आपका डाटा वहां से चुराया जा सकता है। सो ऑलवेज मेक श्योर टू यूज सिक्योर वेबसाइट्स। एंड द फोर्थ पॉइंट इज, कभी भी कोई भी सॉफ्टवेयर की वल्नरेबिलिटी आती है, ऑलवेज अपडेट द सॉफ्टवेयर्स
whatever in your system, always update them. क्योंकि ये अपडेट्स इसलिए आते हैं क्योंकि आपका जो सिस्टम है उसमें कुछ ना कुछ वल्नरेबिलिटी रहती है, तो उसको पैच करने के बाद ये जो अपडेटेड सॉफ्टवेयर्स वगैरह आते हैं, ठीक है। तो भाई ये जैसे हमने कुछ वेज देखे कि आप कैसे सिक्योर रह सकते हो, वैसे यार अभी कुछ लोगों के दिल में आ रहा होगा कि भाई ठीक है, जैसे आपने बता दिया कि ऐसे ऐसे हम सेफ रह सकते हैं, बट हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारा पुराना डाटा है वो सेफ है या फिर नहीं है। जो हम ईमेल्स यूज कर रहे हैं, जो आपके मोबाइल नंबर है, वो किसी पहले डाटा ब्रीच के अंदर आए हैं या फिर नहीं आए हैं। ओके, जो भी आपके पास लिंक्स वगैरह आते हैं, आपका मन करता होगा कि मैं उसके ऊपर क्लिक करूं क्लिक में, बट आपको डर भी रहता है कि अगर क्लिक कर दिया तो आपके साथ होगा क्या, ठीक है। तो अभी हम कुछ टूल्स के बारे में देखेंगे कि आपको फिर पता चलेगा कि आप कैसे कैसे मतलब अपने आप को देख सकते हो कि हमारा डाटा सेफ है या फिर नहीं है। सो फर्स्टली मैं आपको वैसे इस वेबसाइट के बारे में बताना चाहूंगा, हैव आई बीन पॉन्ड, ठीक है। सो जो भी आपकी ईमेल एड्रेसेस वगैरह है जो पहले कभी डाटा ब्रीच के अंदर आए हैं या फिर नहीं आए हैं, ठीक है, तो ये चीज आपका मतलब पता लगाती है कि आप पहले से ही हैकर के शिकार हो या फिर नहीं हो। ओके, या दिस वेबसाइट इज सिक्योर, ये वेबसाइट सिक्योर है, आप आराम से जाके इसके ऊपर चीजें डाल सकते हो, और हाँ आपके कोई थेफ्ट वगैरह कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो हाँ, जैसा कि अगर आप देखते हैं कि कोई जैसे ईमेल आईडी मतलब किसी ब्रीचेज में आ रखी हो, सो ये वेबसाइट उस चीज की पूरी इंफॉर्मेशन आपको दे देती है। द सेकंड थिंग इज आवर गूगल पासवर्ड चेकअप। गूगल पासवर्ड चेकअप क्या करता है, जो भी आपके पासवर्ड्स वगैरह है वो सब अपने आप ट्रैक करना कर लेता है, और हाँ वो आपको बताता है कि कोई आपका पासवर्ड वीक है या नहीं है, कोई आपका पासवर्ड आपने कितनी बार यूज कर रखा है, ठीक है। तो कुछ ऐसे टूल्स है जिसका अपन को बार बार यूज करते रहना चाहिए, और पासवर्ड को हमेशा बदलते रहना चाहिए। आपको पता है पासवर्ड इज लाइक ए टूथब्रश, ठीक है, एक टूथब्रश की तरह होती है, आपको उसको बार बार बदलते रहना चाहिए अनलेस यू गेट ए कैविटी इन योर बैंक अकाउंट। अगर आप नहीं चाहते कि आपके बैंक अकाउंट में कोई कैविटी आए तो हाँ आपको उस चीज को बार बार बदलना चाहिए, ठीक है। एंड द थर्ड थिंग इज वायरस टोटल। यार वायरस टोटल क्या है, यहाँ पे आप कुछ भी URL वगैरह डाल सकते हो, कोई भी सस्पिशियस आपको फाइल वगैरह लगती है आप इसके अंदर डाल सकते हो, एंड इट विल टेल यू कि जो फाइल है वो सस्पिशियस है या फिर नहीं है, ठीक है। तो यार वैसे अभी तक अपन ने काफी बातें कर ली है, अपन ने कुछ टूल्स वगैरह के बारे में देखा, पर टूल्स यहाँ पे वैसे खत्म नहीं होते हैं, और भी वैसे काफी टूल्स है। आप भी वैसे थोड़ा सा बोर हो गए होंगे, ठीक है। तो अब मैं वैसे इनवाइट करना चाहूंगा मेरे दोस्त को, जिनका नाम निशांत है, जो कि आपको एक प्यारी सी नन्ही सी स्टोरी सुनाएंगे, एंड विच विल टेक यू इनटू सम अनदर वर्ल्ड। सो आई इनवाइटेड मिस्टर निशांत फॉर इट। लेट्स मेक a huge round of applause for him. हेलो एवरीवन। तो बोर हो गए साइबर सिक्योरिटी से थोड़ा सा? नहीं होगा। चलो फिर थोड़ी देर में आते हैं साइबर सिक्योरिटी में, एक छोटी सी क्लिप स्टोरी हो जाए। स्टोरी का टाइटल है A boy who stole $3.4 billion but made one mistake. $3.4 बिलियन चुरा तो लिए, बट गलती क्या की? फाइंड करके बतानी, स्टोरी में बताता हूं। पहले थोड़ा सा एक बार जॉर्जिया की सैर करके आते हैं। जॉर्जिया USA में एक चाइनीज फैमिली आई हुई है जॉर्जिया में, मस्त आराम से आई थी, पैसों की कमी हो गई, जॉब चाहिए, काफी ढूंढी, मम्मी को एक ओवरनाइट नर्स की जॉब मिल गई, पापा को जॉब नहीं मिली, तो जॉबलेस लोग मोस्टली सट्टेबाजी करते हैं, सट्टेबाजी, और उनका एक होनहार बच्चा था जिमी जॉन। अब एक ओवरनाइट नर्स से काम तो नहीं चलता, पैसों की कमी थी, जिमी परेशान, पैसे तो चाहिए, किसी ना किसी तरीके से ढूंढने भी है पैसे। अब तरीका ढूंढा, थोड़ा सा और ढूंढा, तो उसे पता लगा बिटकॉइन माइनिंग के बारे में। किसी को पता है माइनिंग क्या होती है? कोई बताओ यार। वेरी क्लोज टू इट, बट बिटकॉइन माइनिंग होती है कि ट्रांजैक्शंस जो बिटकॉइंस की होती है वो वेरीफाई होनी होती है, उसके अंदर कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल पजल्स और कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशंस को सोल्व करने पे हमें रिवॉर्ड मिलती है कुछ, वो होती है बिटकॉइन माइनिंग।
अब बिटकॉइन माइन किए, उसने कुछ ही टाइम में 5000 बिटकॉइन अर्न कर लिए। अब सोच रहे हो यार 5000 बिटकॉइन, पूरे पैसे आ गए होंगे उसके पास। बट बात 2009 की है, वो 2009 में बिटकॉइन का प्राइस कुछ भी नहीं था। अब 5000 बिटकॉइन की वैल्यू केवल $6। $6 से क्या होगा, हटाओ यार इसे, सोच के जाने दिया। अब जाने दिया, लैपटॉप भी छोड़ दिया। अब बात करते हैं, आ गया 2013, 2012 आया। वो यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में स्कॉलरशिप के थ्रू CSE में पढ़ाई कर रहा था, मस्त आराम से पढ़ाई कर रहा था, टॉप कर रहा था। लेकिन उसको एक गलत आदत लग गई, ड्रग्स की। अब ड्रग्स की आदत लगी है तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ तो करना पड़ेगा ड्रग्स का, कहीं से भी हो। अब उससे पता लगा जुगाड़ करते करते कि सिल्क रोड नाम की चीज है। तो बता सकते हैं कुछ सिल्क रोड के बारे में कुछ? नाम क्या है भाई? क्लैपिंग करो इसके लिए यार, कुछ परफेक्ट बताया है। सिल्क रोड एक एनोनिमस मार्केट है डार्क वेब पे, जो ड्रग्स डीलिंग, वेपन डीलिंग, हिटमैन हायरिंग और भी बहुत सारी लीगल चीजों के लिए यूज होती है। अब सिल्क रोड के बारे में पता लगा, अगले ने अकाउंट भी बनाया। अब उसे पता लगा यार सिल्क रोड पे ट्रेड होती है, कोई भी हम बाय सेल करते हैं, कोई भी तो बिटकॉइन से होती है। और 2012 में बिटकॉइन का प्राइस $30+ चल रहा था। अब सोचा यार मेरे पास तो 5000 बिटकॉइन थे, 5000 बिटकॉइन $30, $600,000 के आसपास उसके पास हो जाते। अब मिला नहीं उसको अकाउंट, गया लैपटॉप के पास, भाई मेरे को अकाउंट चाहिए। देखा कि हार्ड ड्राइव करप्ट पड़ी है, हार्ड ड्राइव करप्ट थी तो उस टाइम पे इतना कुछ टेक्नोलॉजी थी नहीं जो हार्ड डाटा रिट्रीवल के काम आ जाए। अब डाटा रिट्रीव के लिए जो भी टेक्नोलॉजी यूज होती थी वो सोचता था यार बिटकॉइन, जितने तो मेरे रुपए के बिटकॉइन नहीं है उतने तो खर्चा हार्ड ड्राइव ठीक करवाने में लग जाएगा, तो इसको भी जाने देते हैं। अब लेकिन ड्रग्स तो चाहिए ही चाहिए तो भाई खुद के पैसों से बिटकॉइन खरीदे। अब बिटकॉइन खरीदे, गया सिल्क रोड पे ड्रग्स के लिए। देखा प्राइस तो काफी महंगी है, छोड़ यार आसपास से ले लूंगा, नहीं ले रहा, यहाँ से काफी महंगी आ रही है, गरीब आदमी हुआ बेचारा। अब बिटकॉइन तो उसमें डाल तो दिए थे उसने, अब विड्रॉ करने गया वो, लेकिन सबर नहीं था क्योंकि पैसे उसके थे वहां पे। सबर नहीं होता तो बार बार क्लिक करते विड्रॉ बटन पे। अब विड्रॉ बटन पे उसने क्लिक भी कर लिया। अब यार उसे पता लगा कि उस वेबसाइट में इशू है, रेस कंडीशन। कोई बता सकता है रेस कंडीशन के बारे में? शायद नहीं पता किसी को, चलो बता देता हूं। अब कुछ एक ही अमाउंट पे 2-3 ट्रांजैक्शन पैरेलली चल रही है और वो 2-3 ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो जाए और सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाए तो उसमें क्या होता है कि वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होने के बाद वो 2 बार एग्जीक्यूट हो गई मान लो, तो 2 बार ही आपकी वो सक्सेसफुल हो जाएगी। जैसे कि आपने CIA में पढ़ा था इंटीग्रिटी, और वो इंटीग्रिटी नहीं रहती वहां पे। सेम डाटा 2 बार चेंज हो गया जबकि हमें करना था एक ही बार। अब उसने देखा यार मेरे पास तो आ गया डबल विड्रॉल, भाई के पास आ गया पैसा आ गया तो क्या करना है। लेकिन पैसा एक बारी से काम थोड़ी ना चलता है, ड्रग्स तो ले लिए एक बारी, अब लालच और बढ़ी। अब उसने चेक किया यार ये आते कहां से असलियत में, क्योंकि 2 बार आया, मैंने तो एक ही बार डाले थे, लेकिन ये आए कहां से। अब उसे पता लगा कि भाई ये चैनल में सफल होते रहते हैं बिटकॉइन। चैनल में सफल होने का मतलब बताओ कोई भी यार, चैनल में सफल होना सिंपल इंग्लिश है,
तो बिटकॉइन की शफलिंग होती है कि चैनल में ट्रैवल करते हो मल्टीपल अकाउंट्स के अंदर, कभी एक अकाउंट में गए, फिर दूसरे अकाउंट में, फिर तीसरे अकाउंट में, फिर वापस किसी और में चले गए, जिससे ट्रैकिंग काफी मुश्किल हो जाती है। इसलिए अब उसे पता है यार बिटकॉइन कितने हो रहे होंगे, 50-60 हजार बिटकॉइन हो रहे हैं। तो जिमी हमारे लालची थे, यार निकाल लूंगा सभी को, CS का तो मैं हुई, निकाल लूंगा। अब तो एक ही दिन के अंदर अंदर उसने 50,000 प्लस बिटकॉइन निकाल दिए। अब सोच रहा है यार पैसे बहुत आ गए, क्या करूं, थोड़े टेंडर्स खरीद लिए, लेकिन अब भाई सिल्क रोड जिसका था उसे पता लग गया मेरे साथ तो स्कैम हो रहा है। एक ही बंदे ने पैसे निकाल लिए मेरे सारे। अब पैसे निकाले तो उस टाइम पे सिल्क रोड का मालिक था रोज, तो रोज गया जिमी जोंग के पास, पूछ रहा है कोई कि अब ऑब्वियसली बात है, वो केस तो कर नहीं सकता, वो इलीगल चीज है। अब उसके पास गया, वो बता तो क्या गलती रही होगी। तो जिमी जोंग कहा मैं फ्री में क्यों बताऊं, अब फ्री में नहीं बताए तो कहा चल कुछ बिटकॉइन ले ले। तो उसने कुछ बिटकॉइन उसको ऑफर कर दिए। अब वो भी खुश क्योंकि उसके पास जो बिटकॉइन आए थे वो लीगल थे। उसने शराफत से चलो मैं अच्छा इंसान ही बन जाता हूँ, थोड़ा सा बता दिया उसको भाई ये गलती थी। रोज भी खुश, अब तो मेरा भी बिजनेस चलेगा कि मैंने पता लगा ली ये गलती थी, ठीक करी। लेकिन 2013 में आया, रोज की किस्मत खराब। अब रोज की किस्मत खराब तो सिल्क रोड पकड़ लिया गया FBI ने उस पर रेड करी सिल्क रोड पे। अब बात तो वही पड़ गई यार, रोज करे क्या। रोज पकड़ा गया, जहां जितने भी बिटकॉइन थे सिल्क रोड के थ्रू ट्रैवल करे थे वो पकड़ तो लिए गए, बट FBI कह रही है 50,000 बिटकॉइन मेरे गायब है। यहाँ पे 50,000 बिटकॉइन गायब हो गए, चाहिए तो कहीं ना कहीं से। काफी ट्रैक करने के बाद FBI को पता लगा यार ये तो एक इनएक्टिव वॉलेट में पड़े हुए हैं, 2 इनएक्टिव वॉलेट में पड़े हुए हैं। अब दूसरी तरफ जिमी ने उन 50,000 बिटकॉइन को एक में 10,000 डाल दिए, एक में 40,000, और सोच रहा इससे भी पैसे कमाऊंगा। तो दिमाग बहुत तेज था अगले का, पैसे कमाए, उससे बन गया एसेट मैनेजर वहां पे। अब एसेट मैनेजर बना, लोगों ने उसको अप्रोच किया, कुछ एसेट मैनेजर से उसने पैसे कमा लिए। वही बात वही थी, बिटकॉइन में ट्रेड करना था, बिटकॉइन का प्राइस ऊपर ही ऊपर जाता जा रहा था। एसेट मैनेजर से उसने पैसे कमा लिए, और जो रोज ने उसको कुछ गिफ्ट दिए थे, उसकी मस्त लाइफ आराम से चल रही थी, मस्त लाइफ एंजॉय कर रहा था, घर खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली, मस्त और आराम से मौज मस्ती चल रही थी। बट कितने पैसे आएंगे, एसेट मैनेजर भी इसको बंद कर देता हूँ, छोड़ दी। 2019 के बाद उसके पास पैसे खत्म हो गए। अब सोच रहे यार मेरे पास 50,000 और पड़े हैं, कर लेता हूं इनको। अब 2019 के टाइम पे अगर आपको कोई भी ट्रेडिंग वगैरह करनी है तो KYC प्लेटफॉर्म के थ्रू करनी पड़ती है। अब KYC का मतलब तो पता ही होगा, हाँ जी। तो उसमें ये भी पता होगा रियल आइडेंटिटी यूज होती है सारी। तो रियल आइडेंटिटी से उन्होंने अपना अकाउंट भी बना लिया। तो थोड़े से डाल देता हूँ उसमें, थोड़े से बिटकॉइन डाले, लेकिन FBI भी तेज थी, नजर रख रखी थी किस दिन वो एक्टिव हो, किस दिन उसको पकड़ेंगे। अब FBI को पता लगा ये तो चोर है जिमी जोंग। लेसन की बात करते हैं, हमें ईमानदारी दिखानी चाहिए और गलत काम नहीं करना चाहिए। यहाँ पे सीख तो लेंगे हम, लेकिन गलत काम नहीं करना चाहिए। अब दूसरी बात, बाय द वे, मन कर जाए चोरी का, कर भी ली, कृपया उस चोरी के हुए सामान को अपने घर पे ना रखें, कृपया पड़ोसी के घर पे रखें, उसको कुछ थोड़ा बहुत सेटलमेंट कर ले बस। और कोई भी स्टोलन फंड मूव करने के लिए KYC प्लेटफॉर्म का यूज ना करें, सबसे बड़ी बात यही है। और जो लोग सोचते हैं कि क्रिप्टो करेंसी ट्रैक नहीं होती, वो भी ट्रैक होती है ब्लॉकचेन फोरेंसिक्स के थ्रू। अब काफी देर होगी स्टोरी सुनते हुए, जिस पल का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, डार्क वेब। अब वो अनुज सर आएंगे, बताएंगे आपको डार्क वेब के बारे में। गाइस सुन रहे हो? तो आज मैं आपको बताऊंगा डीपेस्ट पार्ट ऑफ द इंटरनेट को कैसे एक्सेस करते हैं। Really? ये आपने एक्सपेक्ट किया थी मैं आज आपको ये सब बताऊंगा? ना। तो आगे बढ़िए। तो जो डीपेस्ट पार्ट आप ये बोलते हो, डार्क वेब बोलते हो, ऐसा तो होता है क्या ऐसा कुछ? टच कर रहे हो मतलब नहीं होता ना? क्यों है? नहीं होता।
एक्चुअली ये डार्क वेब या डार्क वेब .com आप जैसे सोचते हो वैसा कुछ होता नहीं है। जैसे कि एक डार्क वेब आप टाइप करोगे डार्क वेब .com जाओगे तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जाके सब कुछ इलीगल है। क्या वहाँ पे जाओ वो हो गई दूसरे ब्रह्मांड में आ गए, ये तो कहाँ आ गए, ठीक है। तो डार्क वेब जैसे कुछ होता है नहीं। तो एक्चुअली होता क्या है, अगर डार्क वेब नहीं है तो उसकी जगह होता है टॉर क्या होता है, द अनियन राउटिंग प्रोटोकॉल। ये एक ऐसा नेटवर्क बना रखा है आपके एनोनिमिटी को परफेक्ट करने के लिए। इट एनहांसेस योर एनोनिमिटी क्लोज टू परफेक्ट। अब इसका मतलब क्या है कि आपकी एनोनिमिटी को परफेक्ट कर देता है। आइडियाज देखो, पीयूष भाई ने जो बताया था, पीयूष भाई ने जो बताया था कि चॉकलेट्स मिलेंगी, मेरे बारे में क्या दे सकता हूँ, पेन ड्राइव है, ज्यादा इंटरेक्टिव रहोगे पेन ड्राइव मिलेगी, तो देख लो। हाँ तो बताओ एनोनिमिटी को परफेक्ट करने का क्या मतलब है? कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। तो इसका मतलब है आप इंटरनेट से गायब। ओ अरे ब्रो, हाँ बोल। एनोनिमिटी को परफेक्ट करता है, इसमें आपका लोकेशन रिवील नहीं होगा, आपकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होगी, और आप टॉर ब्राउज़र को अगर फुल स्क्रीन पे यूज करते हो तो आपका स्क्रीन का रेजोल्यूशन क्या था, अगर आप इसको फुल स्क्रीन पे भी नहीं करोगे तो आपका डिस्प्ले का भी स्क्रीन नहीं कितना जीबी का अमन तो नहीं आईपी और मैक कोई मैक का फिजिकल एड्रेस होता है, आईपी के अलावा बहुत कुछ होता है भाई, आईपी के थ्रू ही सब कुछ खुलता है। तो ये पॉइंट सही था, प्रज्वल नाम था ना, फोल्डर के नाम बहुत सही बोला कि आपको ये एकदम सब कुछ एनोनिमाइज कर देगा। एनोनिमाइज मतलब आपको इंटरनेट से गायब। अब गायब कहने का मेरा मतलब क्या है कि जो आपकी जो इन्फ्लुएंसेस होते हैं ना, ये आपको बताते हैं कि आप डार्क वेब पे जाओगे तो ये सब कुछ होगा, आप बच जाया करो। एक्चुअली इन अ वे वो सही बोलते हैं और इन अ वे वो गलत ही बोलते हैं। और इसका मतलब क्या, एक काम करते हैं, सबसे पहले तो ये करो, आपको आईपी एड्रेस का बताया प्रज्वल ने, इसका मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो यूँ समझ लो कि आपका ये इंटरनेट का आपकी जो जगह है वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन से आपको ट्रैक कर सकते हैं। मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं एक फिशिंग लिंक जो पीयूष ने बताया उसके अंदर एक मैं ऐसा कोड इम्प्लीमेंट कर देता हूँ कि आपका आईपी जो है आईपी एड्रेस है वो मेरे पास आ जाए, तो आईपी एड्रेस से क्या हो सकता है, लोकेशन ना। तो एक्चुअली करते क्या है, जब आप google.com सर्च करते हो, मतलब सर्च करते हो अपने ब्राउजर पे, तो सबसे पहले तो ब्राउजर पे जाओगे तो google.com लिखेगा कि भाई साहब कहाँ से आए, देखते हैं कि भाई साहब तो इंडिया से हैं, इंडिया में कहाँ से, हरियाणा से, हरियाणा में कहाँ से, मैं तो यार ऑडिटोरियम के वाईफाई से कनेक्टेड हूँ। तो मतलब ये बंदा ऑडिटोरियम में बैठा है, देख रहे हो, बस एक आईपी एड्रेस पर बस वाईफाई से कनेक्ट किया था और ये पता चल गया मैं ऑडिटोरियम में बैठा हूँ। और यही नहीं, और क्या क्या है, ब्राउजर पे चल जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, आपने प्रीवियस एक्टिविटी उस वेबसाइट पर कुछ कर रखी है। गूगल को आप सिक्योर मानते हो? नहीं है, वो सारा डेटा बेच रहा है, किसको, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को। आप सोच रहे हो कि यार मैं थोड़ी देर पहले तो बात कर रहा था, उनको पता कैसे चल गया? तो आपने उसका सुना आई एग्री टू ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है, आप उस पर टाइप मतलब क्लिक करते हो, आगे चले जाते हो, लेकिन उसमें ब्लू ब्लू सा होता है ना वो, कि आप उस पर क्लिक करोगे तो टर्म्स एंड कंडीशन है। ये पढ़ने का किसको टाइम है यार, टिक किया आगे निकला। उसमें एक छोटा सा क्लोज भी है कि आपका माइक हम एक्सेस कर सकते हैं, वो अलग से परमिशन नहीं मांगेगा। तो आपका कैमरा भी उनके पास है, आपका माइक भी उनके पास है, तो आप सिक्योर हो गूगल के थ्रू? नहीं होना, क्या पता गूगल के सर्वर पर कोई बैठा हो पहले से बंदा। बैकडोर का सुन रखा आप सबने? बैकडोर यानी कि एक घर का पीछे वाला दरवाजा। अब इसको साइबर के सेंस में बताता हूँ कि मान लो एक गूगल को एक्सेस करने के लिए गूगल के सर्वर को हम एक यूजर आईडी और पासवर्ड से एंटर करते हैं, लेकिन क्या पता है किसी मैलिशियस हैकर ने उसके अंदर एक कोड एम्बेड कर रखा हो कि मैं जब चाहूँ उस पर एक्सेस ले सकता हूँ खुद के क्रेडेंशियल्स डाल के। तो क्या पता गूगल के सर्वर पे कोई बैकडोर खोल के बैठा हो और वो आपका डेटा खुलेआम एक्सपोज कर रहा है। क्या पता आपका वो जो आपने कॉल रिकॉर्डिंग सुनी थी कि आपका डेटा डार्क वेब पे लीक हो रहा है। लीक कैसे हो रहा है पता है? लोग क्या कहते हैं डार्क वेब पे, आपका जो डेटा है ना, जैसे कितने लोग बैठे होंगे, 100, 150 कितने ना, आप सबका डेटा यूजर आईडी जैसे अपने भरा था,
तो वो सब आपकी एक लिस्ट होती है और वो बल्क के भाव में बेचते हैं। किसको बेचते हैं? स्कैमर्स को। तो स्कैमर्स क्या करते हैं? हेलो जी, आपका ना डेटा लीक हो गया है, तो आपने जल्दी जल्दी इतने पैसे कर दो, वरना आपकी तो लाइफ के, समझ रहे हो? तो आईपी एड्रेस से आपकी एक्चुअल लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं, है ना? तो एक काम करते हैं, वॉलंटियर्स चेयर को कोई भी एक आ जाओ, किसी नए आदमी को उठाओ, ठीक है? पेनड्राइव दूंगा यार, आ जाओ कोई तो, अभी नहीं दूंगा, बाद में दूंगा। प्रज्वल, भाई आप प्राइस ले तो भाई एक बात बताओ, आप google.com सर्च करते हो तो कैसे करते हो? कौन सा? अच्छा, वेव करते हो, फिर उसमें आगे सर्च करते हो, ठीक है? तो ये तो हो गया एक नॉर्मल यूजर का फ्रंट एंड पार्ट। और ये बैक एंड में कैसे काम करता है? सबसे पहले तो आप कौन सी सिम यूज करते हो? जियो यूज करते हो, तो यानी कि आप सबसे पहले जियो को बोल रहे हो कि मेरे को गूगल को एक्सेस करना है। तो आप सबसे पहले तो आईएसपी को, अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जियो, एयरटेल कोई भी हो गया, उसको अपना देते हो और फिर वो आपकी रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड करते हैं गूगल सर्वर पे। गूगल सर्वर रिस्पॉन्ड तो कैसे? गूगल सर्वर क्या करता है? तो गूगल सर्वर क्या करता है? आपको रिस्पॉन्स में देता है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, ये सब देता है। और इसको कंपाइल्ड फॉर्म में आपको मतलब एक आउटपुट देता है आपकी वेबसाइट। तो अब आप सोच रहे होंगे क्या बोल रहे हैं अनुज भाई यार, इतनी देर टोर की बात करें, डार्क वेब की बात करें थे, इस पे कहां से आ गया? बेसिक्स बिल्डअप करने पड़ते हैं। तो ना टोर एक स्पेशलाइज्ड अप्रोच यूज करता है, द अनिल राउटिंग प्रोटोकॉल सुना है? ओके, तो मेरे को चाहिए 4 वॉलंटियर्स, कोई भी खड़े हो जाओ, 4 वॉलंटियर्स, आप 4 तो मान लो ये है मेरी रिक्वेस्ट, आगे आ जाओ। अंकित काम करो, पीछे आप खड़े हो जाओ, ठीक है? आप यहाँ पे आ जाओ। तो मान लेते हैं मैं हूँ इंडिया में, ऑडिटोरियम में बैठा हूँ अपने जीवन में, तो ये मेरी आईपी एड्रेस हो गई, मतलब ये मेरी रिक्वेस्ट है। google.com का सर्च करना है, आप हो गए google.com का सर्वर, आपके पास ये रिक्वेस्ट आएगी। तो ये भाई साहब है जर्मनी में, ठीक है? ये जर्मनी का एक राउटर है जो रिक्वेस्ट प्रोसेस कर रहा है। और आपको क्या नाम है? प्राची बैठी है ऑस्ट्रेलिया में, मतलब इनका राउटर है ऑस्ट्रेलिया में। आप मानसी बैठी है साउथ ऑफ जापान में तो क्या करो, जर्मनी के पास वेट, जर्मनी के पास मेरी रिक्वेस्ट गई है। पहले मैंने सर्च किया था google.com को, पहले गई जर्मनी के राउटर पे। अब प्राची जो ऑस्ट्रेलिया में बैठी है वहां पे रिक्वेस्ट गई। अब मानसी जो साउथ ऑफ जापान में बैठी है वहां पे रिक्वेस्ट गई। आपका क्या नाम है? अब अंजू के पास रिक्वेस्ट है, गूगल सर्वर है। तो अंजू आपके पास रिक्वेस्ट कहाँ से आई? साउथ ऑफ जापान से। मानसी आपके पास कहाँ से आई? जर्मनी नहीं, ऑस्ट्रेलिया से। आपके पास कहाँ से आई? तो गूगल को तो पता ही नहीं चला ना कि इंडिया से रिक्वेस्ट आई है, आपको तो लग रहा है जापान से आई है। तो कैसे पता लगाओगे? थैंक यू सबके लिए। क्या फंडा समझे? ये सबसे बेसिक वे में जो मैं आपको बता सकता हूँ वो यही है। तो बोलती है कि रिक्वेस्ट थी जो फॉरवर्ड होती रहती है, आपकी आईपी एड्रेस चेंज होती रहती है। ये जो जब सर्कल्स देख रहे हो, सबसे पहले यूजर था, ये पूरा टोर नेटवर्क है। ये जो सारे थे ये मैंने आपको बुलाए थे, राउटर्स मान लिए। तो एक राउटर्स के पास रिक्वेस्ट गई, फिर दूसरे के पास, फिर तीसरे के पास, फिर उसने आगे गूगल को भेजी। और गूगल को तो लग रहा है जापान से बंदा है, जापान से बंदा सर्च कर कौन सा फेवरेट गाना है? भोजपुरी गाना सर्च कर रहा है यार। अब क्यों समझो कि जापान में बैठा बंदा वो भोजपुरी गाना सर्च कर, सेंस नहीं बनाता है।
तो आप ट्रेस कर सकते हो इंटर रिक्वेस्ट टॉर में, बताओ नहीं कर सकते? अच्छा, तो मतलब इतना हो गया तो फिर तो आप ट्रेस किसी को नहीं कर सकते, कुछ ही करो उस नेटवर्क पे, है ना? इन वे सही है कि आप ट्रेस नहीं कर सकते कुछ लिमिट तक, मतलब क्लोज टू परफेक्ट ये अपने एनोनिमिटी करते हैं, क्लोज टू परफेक्ट नहीं हो सकता। तो ये काम कैसे करता है देखो, तो और क्लाइंट है उसका एंट्री नोड कैसे, जैसे अखिल था, अखिल जर्मनी में था, तो ये मेरा हो गया गार्ड नोड। इसके बाद रिक्वेस्ट गई ऑस्ट्रेलिया, रांची के ऑस्ट्रेलिया के बाद गई वहाँ पे आगे मानसी के पास, मानसी के बाद अंजू के पास, तो ये देखो यहाँ पे 3 बार ऐसे चेंज हो रहा है। और जो एग्जिट नोड था मानसी के बाद वो आगे अपनी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करती है, ठीक है। और ये रिक्वेस्ट मतलब चेंज होते रहते हैं नोड, से फिक्स नहीं कि आपके 3 है ही। तो इतनी एनोनिमिटी है, हम तो इंसान है, मिसयूज तो करेंगे। क्या क्या होते हैं? ड्रग्स मार्केट, स्टोलन डेटा सेल्स, ये सही है। हैकिंग सर्विस, ठीक है। हिटमैन को हायर करना, आप किसी को करने के लिए हायर भी कर सकते हो किसी नंबर से। तो इसके डार्क वेब एक्सेस करने के लिए एंट्री पॉइंट है, क्या क्या है आपको बताइए। थोड़ी सी स्लाइड टेक्निकल इशू है, तो इसके थ्रू मैं आपको बता नहीं सकता क्या क्या होता है, और थोड़ा एक्सप्लिसिट कंटेंट भी है। तो मेनली इतनी सब कुछ इतना सब कुछ इलीगल चलता है डार्क वेब पे, तो गवर्नमेंट इसको बैन क्यों नहीं करती? गवर्नमेंट भी यूज करती है। क्या बोलो? गवर्नमेंट भी यूज करती है। गवर्नमेंट यूज करती है, ठीक है। और अगर गवर्नमेंट चाहती है कि ऐसे लोग ना यूज करना सब कुछ इलीगल हो रहा है, उसको बैन करना चाहिए ना, जहाँ से वो शुरू हो रहा है उसको बैन नहीं करना चाहिए। क्यों? चोर को पकड़ने के लिए उसकी जैसे ही सोचना पड़ता है। और अगर चोर भरे पड़े हैं तो पूरे मार्केट में ही चोर है, तो गवर्नमेंट कौन सी सही है? वो थोड़ा अलग होगा। देखो इसका आंसर है, इसकी हिस्ट्री है। टॉर बनाया था द अनियन राउटिंग प्रोटोकॉल यूएस नेवी ने 1990s में अपनी सिक्योर कम्युनिकेशंस के लिए। तो उसके बाद ना गवर्नमेंट ने सोचा, यूएस गवर्नमेंट ने, कि इसको ओपन सोर्स क्यों ना कर दो, कि मतलब हर एक सिटीजन का एक राइट है ना कि वो अपना प्राइवेसी चाहता है। मैं नहीं चाहता भाई कि मैं गूगल पे जाऊँ तो उसको मेरी सारी डिटेल्स पता हो, आईपी एड्रेस का पता हो, मेरी मतलब कौन सा कहाँ बैठा हूँ मैं, कहाँ मेरा वेबकैम भी उसके पास है, मैं नहीं चाहूँगा ना। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने, यूएस गवर्नमेंट ने इसको ओपन सोर्स कर दिया। और इसका एक और भी तरीका है, राइट टू प्राइवेसी। अगर मेरा राइट है तो गवर्नमेंट इसको छीन सकती है। भाई जरूरी थोड़ी है कि मैं डार्क वेब, यानी कि डार्क वेब वैसे आपको बता दिया कि होता नहीं है, टोर नेटवर्क। अब टोर नेटवर्क पे मैं जा रहा हूँ, जरूरी थोड़ी कि मैं ड्रग्स लेने जा रहा हूँ, मैं तो मेरा नेटवर्क प्राइवेट कर रहा हूँ ना। और क्या क्या, तो टोर तो हो गया। आप सोच लोगे भाई यार टोर नेटवर्क, टोर ब्राउज़र कनेक्ट करना पड़ेगा, ये जाएंगे उस राउटर में जाएंगे, स्पीड गिरेगी। तो इसके अलावा कोई है? यस, लिखा हुआ है। आइडियाज क्या हो सकते हैं? प्रॉक्सी और VPN और
इनकॉग्निटो किसने बोला? इनकॉग्निटो पता है कैसे काम करता है? उस पर लिखा हुआ है, गूगल क्रोम पे जाते हो तो इनकॉग्निटो में लिखा हुआ है ना कि आप जो सर्च कर रहे हो वो स्टिल आपके आईएसपी के पास जाएगा। तो यानी कि अगर आप ऑडिटोरियम का कनेक्ट करके कुछ बढ़िया सा आप सर्च कर रहे हो तो उनके सर्वर पे वो जा रहा है, ठीक है। तो इनकॉग्निटो इज आउट ऑफ ऑप्शन। कोई हॉस्टल में बैठा है, वो एक इनकॉग्निटो करके अपना बस चला रहा है, तो वो ऐसे काम नहीं करता। आप उसके सर्वर पे क्या पता कोई नटखट बालक हो, वो सर्वर को देख ले तो सारे राज खुल गए आपके। तो प्रॉक्सीज बोला, क्या नाम है? हर्ष ने बोला प्रॉक्सीज ठीक है, लेकिन ना बेस्ट होती है प्रॉक्सीज जो पेड होती है, जिनको आप मतलब पैसे देके खरीदते हो। वो जो प्रॉक्सी प्रोवाइडर्स है, प्रॉक्सी क्या करती है, आपकी लोकेशन चेंज करती है। जो मैंने आपको राउटर से कंसेप्ट बताया, सेम वैसे काम करती है, बस एक ट्रस्टेड सोर्स होता है, वहाँ से प्रॉक्सीज खरीदते हो। दूसरा बताया वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो वीपीएन क्या करता है? वीपीएन के भी टाइप्स है। आपको एक नो लॉक्स पॉलिसी वाला वीपीएन चाहिए कि मतलब मान लो आपने ओपन वीपीएन का सुना है, फ्री है, सब है, मतलब उसमें आराम से अपना एक्सेस करो, वो सब चल जाएगा। लेकिन क्या अगर वो वीपीएन सिक्योर है, वहाँ पे जैसे मैंने बताया कोई बैकडोर लगा के बैठा है, फिर उसको तो पता है मेरी लोकेशन पता है, तो क्या क्या कर सकता है। आप अगर साइबर सिक्योरिटी में और डीपर डाउन करोगे तो उसमें आपको पता चलेगा आईपी एड्रेस आपका क्रूशियल एक प्राइम फैक्टर है आपको हैक करने का। तो ये जो आपने ये देखा, जब जेई के रिजल्ट्स आते हैं तो उसमें आपकी साइट्स डाउन होती है, क्यों? ट्रैफिक होता है। तो ट्रैफिक यानी कि बहुत सारे यूजर्स हैं, वो उसमें रिक्वेस्ट डाल रहे हैं जेई की, तो यानी कि वो साइट गिर सकती है, ठीक है। क्या हो अगर एक मैलिशियस हैकर ने कई सारे अपने कंप्यूटर, कई सारे सर्वर से एक रिक्वेस्ट डाल दी, और किस पे? आईपी एड्रेस पे। एक वेबसाइट का कभी उस पर नहीं जाती कि gov.in.com, उसकी पहले आईपी हम फाइंड करते हैं, और आईपी डिस्क्लोज नहीं करती वेबसाइट। इसलिए आपको ये जो वीपीएन है, ये आपका आईपी ले लेते हैं। इसलिए फ्री में आपको वीपीएन बताता हूँ, विंडस्क्रैप वीपीएन मैंने यूज़ कर रखा है, बहुत सही है आपको, लेकिन ये एक लिमिट तक फ्री है। आपको 15 GB की बैंडविड्थ मिलती है। तो ये नो लॉक्स पॉलिसी यूज़ करता है, फास्ट है, सिक्योर है। ये सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन मिला था कि अगर आपको टोर नेटवर्क से कनेक्ट नहीं करना तो आप वीपीएन यूज़ कर सकते हो। तो आपके न्यूज़ में देखा होगा आपने कि गवर्नमेंट डिक्रिप्ट कर लेते हैं टोर नेटवर्क को। कैसे कह सकते हैं लोग? कैसे? तो इसके ना दो तरीके होते हैं। पहला होता है गवर्नमेंट अपने सारे रिसोर्सेज लगा देती है, सारे रिसोर्सेज में से ना अपनी मैन पावर लगा देती है, अपने टेक्निकल रिसोर्सेज लगा देती है। कैसे? कि जैसे पहले जो गूगल का सर्वर था, उसको पता चला कि जापान से रिक्वेस्ट आ रही है, तो पहले वो जापान वाले राउटर पे जाएंगे, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, उसको डिक्रिप्ट करेंगे, क्या क्या ट्रैफिक आया है। राउटर के पास जो लॉग्स आते हैं, लॉग्स मतलब कि एक एंट्री पॉइंट्स, वो एंट्री करते हैं कि ये इस टाइम पे ये ट्रैफिक आया है। उसके पहले ऑस्ट्रेलिया वाले भी जाते हैं, फिर वो उससे पहले जर्मनी वाले पे, और फिर मेरे उस तक पहुँचते हैं। तो ये काफ़ी मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैंने एक मैसेज भेजा किसी मेरे दोस्त को टोर नेटवर्क के थ्रू, तो एनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा कि मैं चाह रहा हूँ यार काश यूनिवर्सिटी की छुट्टी हो जाए, तो वो ऐसे तो दिखेगा नहीं गवर्नमेंट को। HTTP का सुना है आपने? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो अगर मैं HTTPS यूज़ कर रहा हूँ तो यानी कि मेरा डेटा जिब्रिश फॉर्म में है, क्रिप्टोग्राफी यूज़ हुई है। आप मैक्सिमम बच्चे आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के हो तो आपके वो सिलेबस में आएगा, तो आपको पढ़ने को मिलेगा कि आप जो डेटा आप जो भेज रहे हो, व्हाट्सएप पहले आप जो मैसेज भेज रहे हो वो एनक्रिप्टेड है। तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, रैंडम वर्ड्स, मतलब नंबर्स दिख रहे हैं आपको, सिंपल लेटर, लेकिन वो जो मेरा दोस्त है उसको तो सेम ही दिखेगा ना, या काश पूरी यूनिवर्सिटी में छुट्टी हो जाए। दूसरा तरीका है गवर्नमेंट कंट्रोल राउटर्स। गवर्नमेंट खुद के राउटर्स बना लेती है। ये जो यहाँ बैठी थी, इन्होंने बताया कि गवर्नमेंट भी तो यूज़ करती है, लेकिन उसको वो थोड़े से अलग वे में यूज़ करती है। कैसे?
मैंने अब तक ये बताया कि जर्मनी में राउटर था और ऑस्ट्रेलिया में था, जापान में था, लेकिन ये बने कैसे राउटर, मतलब कहाँ से आया, किसने बनाया? तो वो भी एक गवर्नमेंट टॉर ओपन सोर्स था, मैं आपको बताया कि पब्लिक इसको एक्सेस कर सकती है। तो टॉर ना अपनी वेबसाइट में क्या करता है, एक ऑप्शन दे देता है आपको राउटर बनने का मौका देना कि आप लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो सिक्योर बनाने में। वो एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, तो आपका जो कंप्यूटर होता है, आपका सर्वर होता है, वो एक राउटर बन जाता है। तो जो आप रिक्वेस्ट भेजोगे उसमें से वो पास होके फिर हो जाएगी। क्या हो अगर गवर्नमेंट खुद ही बना दे तो? और वो जो मैंने एग्जिट नोड वाला बताया जो जापान से रिक्वेस्ट गई, तो उसका एक प्रिंसिपल होता है, whoever is in control of the exit node is also in control of the traffic। तो अगर वो जो ऑस्ट्रेलिया साउथ जापान वाला सर्वर था, मतलब जो राउटर था जो रिक्वेस्ट पास कर रहा है, वो सिक्योर ना हो तो क्या, उसको तो मेरा डेटा दिख रहा है ना, वहाँ से मैंने पास किया है, तो ऐसा काफ़ी मुश्किल हो गया ना। तो गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर दिया तो आपके तो सारा डेटा गवर्नमेंट के पास गया, तो ये काफ़ी मुश्किल काम होता है। तो इसलिए टॉर अकेला सिक्योर नहीं है। आपने ये सोच लिया टॉर ब्राउजर कर लिया, कनेक्ट हो गया, अब तो भाई बल्ले बल्ले, दुनिया का कोई बंदा मेरे को नहीं ढूंढ सकता। इसलिए अकेला नहीं, उसके साथ में आपको और भी चीज़ें ऐड करनी होती है। अब VPN लगा दो, ISP पे आप कनेक्ट हो रहे हो ना, उससे पहले VPN से कनेक्ट हो जाओ। पहले आपने IP चेंज कर दी, उसके बाद फिर वापस 3 बार और चेंज हो रही है। पर जो मैं बार बार ये 3 बार बोल रहा हूँ, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये फिक्स नहीं है। कितनी कंट्रीज है दुनिया में? 190, 195। और इंडिया में कितने शहर होंगे? मतलब मेजर 25-30 मान लो यार कि इंडिया में 25-30 राउटर है, ऊपर से 195 देश है, उसको से मल्टीप्लाई करो कि एक देश में 30 राउटर होंगे, तो कितने सारे हो गए। और बार बार आप एक साइड से दूसरी साइड पे जाते हो तो आपका चेंज होता रहता है। आपका गार्ड नोड जो कि आपकी पहला वो जो आपको डायग्राम दिखाया था, जो एंट्री नोड है वो फिक्स रह सकता है, लेकिन बाद के चेंज होंगे। नेक्स्ट तो रिकैप कर लेते हैं क्या क्या किया। टॉर अनिल राउटिंग प्रोटोकॉल होता है, ये एक ओपन सोर्स बनाया US नेवी ने। टॉर एनहांसेस योर इनोवेटिव बट इट इज नॉट फुल प्रूफ इन द सेंस ये बिल्कुल सिक्योर नहीं है, मतलब क्लोज टू परफेक्ट 99%। गवर्नमेंट हैज वेज टू मॉनिटर टॉर ट्रैफिक कि आपका जो ट्रैफिक है वो एग्जिट नोड्स के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। और VPN और टॉर यूज कर लो, ब्रह्मास्त्र है। इसके बाद तो शायद कर सकते हैं, कई एक्सपर्ट्स होते हैं, लेकिन मेजरली आपको ट्रैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और VPN ने सिक्योर VPN और एग्जिट नोड्स का बता ही दिया। तो जो लास्ट है वो जो गूगल को सर्वर भेज है, लास्ट नोड है, वो आपको क्रिटिकल फैक्टर है। Let's move on to worst ways to best way to access Tor. First, Brave का Tor नेटवर्क। प्रज्वल भाई आपने Tor यूज किया Brave में? Brave में एक ऑप्शन होता है वो जो 3 डंडियां होती है, वहाँ पे जाके न्यू विंडो विद Tor। सबसे खराब चॉइस है कि आप यूँ सोच रहे हो Tor से कनेक्ट हो गया तो भाई सिक्योर हो गया, तो क्यों खराब है? तो एक्चुअली ना ब्रेव ने ऑफिशियली टॉर से कोलैबोरेट नहीं किया, उन्होंने खुद का नेटवर्क बनाया टॉर का। तो ये ऑफिशियली वो उनसे स्टैम्प नहीं लगा हुआ कि ये गारंटीड है कि ये फुल प्रूफ है। तो बहुत सारे DNS लीक्स जैसे कि वो IP एड्रेस को उन्होंने बताया, आपकी इन्फॉर्मेशन लीक होती है, IP एड्रेस आपके बाहर, आपके थ्रेट एक्टर्स इन द सेंस हैकर्स वो लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट होता है आप टॉर ब्राउजर को ना विंडोज में यूज कर लो, तो ये भी एक अच्छा फैक्टर है, लेकिन आपको ये पता होगा कि विंडोज जो है वो हर हफ्ते एक ना एक अपडेट निकालता रहता है। तो अपडेट क्या होते हैं बताओ? सिक्योरिटी के लिए। क्यों, मतलब क्या ऐसा करते हो? बग्स को फिक्स करना, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है उनको एनहांस करना। एनहांस कैसे कि अगर जैसे ये हैकर्स है, बग बाउंटी का ट्यूशन आपको बताया, और ये यहाँ पे एक भाई बैठे थे उन्होंने बताया कि आप एक वल्नरेबिलिटी फिक्स करते हो, तो विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने कई फ्लॉज ढूंढ लिए
और वो फ्लॉज अब तक पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, मतलब विंडोज को नहीं पता कि वो फ्लॉज है। और वो क्या कर रहे हैं, वो जो तरीके हैं जिस तरीके से वो हैक करते हैं उन तरीकों को वो डार्क वेब पे बेच देते हैं। और फिर वो सब कुछ जो आप देखते हो कि डार्क वेब की मार्केट बनती है, वो खरीदते हैं फ्लोज आपका सिस्टम हैक करने के लिए, इसलिए अपडेट करते रहो। और इसीलिए अगर आप टोर ब्राउजर पे जाओगे विंडोज में, तो विंडोज सबसे प्राइम एक टारगेट है। सारे जो जीरो डेज होते हैं, जीरो डेज जिनको मैंने बताया कि वो उनकी अभी तक कोई फिक्सेशन नहीं हुई, उनको कोई फिक्स नहीं किया गया। तो टोर ब्राउजर इन विंडोज इज नॉट अ गुड प्लेस, इट्स बेटर, इट्स नॉट गुड। अगर आता है टोर बूटेबल टेल्स लिनक्स, तो ये जो पेन ड्राइव का मैं बता रहा था, ये ऐसी पेन ड्राइव है जो पॉसिबली एग्जैजरेट नहीं कर रहा, दुनिया के शायद सिर्फ 1% हैकर्स ना इसको ट्रेस कर सकते हैं। तो पेन ड्राइव क्या करती है, इसके अंदर ना मैंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम लगा दिया लिनक्स का टेल्स। तो आपने 3 ऑपरेटिंग सिस्टम्स का पढ़ा है, विंडोज, मैक एंड देन लिनक्स। तो जैसे विंडोज का 8 हो गया, विंडोज 10 हो गया, वैसे लिनक्स के भी तो हैं, काली लिनक्स सुना ही है, और फिर टेल्स लिनक्स। टेल्स लिनक्स बनाया ही इसलिए आपके एनोनिमिटी को एनहेंस करने के लिए। तो अगर ये पेन ड्राइव ना मैं किसी भी लैपटॉप पे, किसी भी कंप्यूटर पे लगाऊंगा और वहाँ पे अपना काम वगैरह करके डार्क वेब का, मतलब टोर नेटवर्क का, और फिर उसको हटा दूंगा, तो कोई भी साइबर फोरेंसिक एक्सपर्ट, यानी जो साइबर पुलिस होती है, वो कंप्यूटर को देखते हैं ना उसमें क्या क्या है, तो अगर उसको देखेंगे तो पता नहीं लगा भाई मैंने उस पर वो एक्सेस कर रखा है। तो ये होता है सबसे बेस्ट वे। और बेस्ट वे भी कैसे, उसके अंदर अगर मैं VPN यूज़ करता हूँ तो यानी इसको ट्रेस नहीं कर सकते, ट्रेस कर सकते हैं क्योंकि ये रैम पे काम करता है। रैम सुना है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, स्कूल में पढ़ा था। तो ये सिर्फ रैम पे काम करता है, जितनी आपकी रैम तेज, और अगर आप उसको निकाल दो तो वो सारा डेटा उड़ गया ना, वॉलेटाइल होता है। तो ये प्राइवेसी फोकस है, बूटेबल पोर्टेबल होता है, किसी भी कंप्यूटर पर लगा सकते हो आप। आपको लास्ट में मौका देंगे, एक इवेंट है, उसके बाद अगर कोई जीतता है तो उसको ये मिलेगी 8 GB गैस, काफ़ी नहीं है, लेकिन इसके अंदर पहले से इंस्टॉल कर रखे हैं। तो टेल्स लिनक्स के अंदर भी ना सिर्फ यही नहीं है कि आप टोर चला सकते हो, आपको मैसेज भी तो करने हैं यार, आपको ईमेल भी करनी है, आपको फाइल्स भी भेजनी है, आपको अपनी वो भी करनी है, क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शंस। तो वो कैसे करते हो, क्रिप्टो करेंसी में। निशांत ने बताया कि वो जिमी जोंग भाई साहब सारा कुछ क्रिप्टो में काम कर रहे थे। क्रिप्टो में क्यों कर रहे थे, क्योंकि वो सिक्योर है, उसको ट्रेस नहीं कर सकते। तो जैसे आपको मैसेज करना है किसी को, तो उसी के अंदर इनबिल्ट आता है पिजन मैसेंजर ऐप, उसमें आप वो कर सकते हो। और दूसरा होता है इल्यूड या फिर टोरबॉक्स। इल्यूड है, इसको मैं अपडेट करना भूल गया, ये अभी टेम्पररी डाउन है, मैंने कल ही चेक किया था। टोरबॉक्स आप यूज़ कर सकते हो, वो भी अप है, लेकिन उसको भी ना आप यूँ नहीं कर सकते कि torbox.com पे जाओ आप। हर अनियन वेबसाइट ना, अनियन कैसे, द अनियन राउटिंग प्रोटोकॉल बोला था ना मैंने, तो अनियन क्या होते हैं, अनियन की अलग अलग लेयर्स होती हैं, और इसी लेयर को वो जो राउटर वाला प्रोसेस था उसको कहते हैं। तो ये जो .com होता है ना, उसमें वो नहीं होता, उसमें जिब्रिश वर्ड्स होंगे, जिसमें मैंने बताया था BX 1 2 3 ऐसे करके लास्ट में आएगा .onion। तो .onion है तो वो सबसे ज़्यादा सिक्योर है। तीसरा, अगर आपको फाइल शेयरिंग करनी है तो गूगल ड्राइव कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है, उसकी जगह यूज़ करते हैं अनियन शेयर, वो भी इनबिल्ट है, वो भी टोर नेटवर्क से थ्रू होकर जाता है। तो यूँ नहीं है कि आपको एक बार किसी को भेजो, तो वो बताता हूँ काम कैसे करते हैं। तो अनियन शेयर करना, मेरे को चाहिए 3 वॉलंटियर्स। अनिल भाई था क्या, आ जाओ। तो प्रज्वल को एक फाइल शेयर करनी है, ये मान लो एक फाइल है, और उसको बताओ ये ना एक प्राइवेट की है। प्राइवेट की ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिया है, वो एक अनियन शेयर प्लेटफॉर्म है, और वो दूसरा इसका प्रज्वल का दोस्त क्वेश्चन तो पढ़े हैं, लिस्ट बनाने अनियन शेयर क्या करते हैं, इसको लेते हैं और उसको दे देते हैं। ये होती है प्राइवेट की, पब्लिक की। आप जो क्रिप्टोग्राफी में कह रहा हूँ आपको आगे समझ में आएगा, आपकी स्लिप्स में आएगा कि जो
प्राइवेट की पब्लिक की है, इसमें से 2 यूजर्स आपस में डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं। अनियन शेयर है, ये आप सोच रहे हो बीच में एक मीडिएटर है, लेकिन ये एक प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म इन द सेंस है कि ये एक सर्विस है, अनियन सर्विस, वही राउटर्स वाला प्रोसीजर ये भी कर रही है। ठीक है, तो डायरेक्टली 2 यूजर्स कनेक्ट हो रहे हैं, बीच में मीडिएटर कोई नहीं है, ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, थैंक यू। और चौथा आता है इलेक्ट्रॉनिक बिटकॉइन वॉलेट, उसी के अंदर है, वही सेम टॉर नेटवर्क के थ्रू होके जाता है, क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शंस होते हैं। और सॉरी मैं आपको ये दिखा नहीं सकता, थोड़ा टेक्निकल इशू है तो इंटरनेट चल नहीं रहा। नेक्स्ट सेशन से प्रैक्टिकल सब कुछ करेंगे। अच्छा 12 बजे अटेंडेंस स्टार्ट कर दो प्लीज। 12 बजे तो आगे पढ़ो जो था। तो इतनी भयंकर है उनमें कि आप सोच रहे यार मेरे को गूगल पे जाना, कुछ सिक्योर करना है, तो इनको यूज़ कौन करता है? 4 तरह के लोग। सबसे पहला जर्नलिस्ट, भी बहुत सेंसिटिव स्टोरी है, दिल्ली में आप जानते हो इतने सारे क्राइम्स होते रहते हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों का पर्दाफाश होता है। तो अगर गवर्नमेंट मॉनिटर कर रही हो तो उनको सिक्योरली कम्युनिकेट करना हो तो वो यूज़ कर सकते हैं जर्नलिस्ट। दूसरे एक्टिविस्ट, ऐसे मान लो कि आज के टाइम पे हमारे इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, अज्यूम कर लो भगत सिंह, गांधी वगैरह सब कुछ है, सब लोग हैं यहाँ पे, और उनको ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक आवाज़ उठानी है, लेकिन प्राइवेट वे में, क्योंकि ब्रिटिश सरकार है वो तो मॉनिटर कर रही है ना, वो क्या यूज़ कर सकते हैं? तो वो यूज़ कर सकते हैं कि हमें ये प्रचार करना है, यहाँ पे जाना है, और गवर्नमेंट को सिर्फ भनक भी नहीं लगेगी, उनको लगेगा यार ये तो ना रशिया से कहीं से ये बातें हो रही है, रशिया का तो क्या देना। तीसरे होते हैं एक्टर हैकर्स, जो पॉसिबली आप लोग बन सकते हो। जैसे जैसे हम सेमिनार्स करेंगे उसके धीरे धीरे आपका बेस बिल्डअप करेंगे। आज पीयूष ने ये इसलिए स्टार्ट किया ताकि आप सबको इंट्रोडक्शन मिल जाता। उनको पता है आप सब आए थे डार्क वेब से लेके, तो क्लिकबेट नहीं किया, आपका बेस बिल्डअप करने के लिए ये सेशंस रख रहे हैं। अगले सेशंस में हम पुलिस आपको कैसे इन्वेस्टिगेट करती है, ओसिन आपने सुना होगा कहीं ने, और तीसरा इंस्टाग्राम कैसे हैक करते हैं वो भी बताएंगे। उसका भी टेक्निकल पार्ट है, मतलब वो हैकिंग के अंदर ही आता है, बस उसको वो सिक्योर करने के लिए। और चौथा आपको साइबर लॉस के बारे में बताएंगे कि मैं इतना सब कुछ बता रहा हूँ, डार्क वेब पे जाओगे और ये जाओगे, थोड़ी सी भी गलती करें ना 10 साल की जेल। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि सब 18 साल के हैं, माइनस तो कोई है नहीं, कोई एक आधा होगा, रजल भाई साहब है तो वो बच सकते, 1 साल का टाइम होगा आपके पास भी, सीधा 10 साल की जेल। इतने स्ट्रिक्ट लॉज हैं। अभी इंडिया है यार, इंडिया में सब एक से एक टैकी भरे बैठे हैं। चौथा विसल ब्लोअर्स, एक ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो इविल कंपनी नाम से है, और वो कर रही है कुछ बहुत ही बुरे काम, जैसे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट है उस पर वो काम कर रही है, लेकिन वो सिक्योरली काम नहीं कर रही, प्रिकॉशंस नहीं ले रही। और मैं वहाँ अंदर बैठा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये बात बाहर पहुँचे, तो वो कैसे कर सकते? और मेरे को पता है मैं अगर उनका नेटवर्क यूज़ करूँगा तो वो मेरे को देख रहे हैं, तो उनको एक्सपोज करने के लिए मैं ये टॉर नेटवर्क यूज़ कर सकता हूँ। मूविंग फॉरवर्ड, मास्टरिंग ऑनलाइन प्राइवेसी। तो अगला पार्ट जो आपको पोस्टर में क्योंकि ऑनलाइन प्राइवेसी अगर टॉर के अलावा और भी तो कई तरीके होंगे, सिंपली तो है नहीं कि हर बार मैं टॉर को एक्सेस करूँगा और फिर करता रहूँगा। पहला स्टेप ब्रेव ब्राउजर और डकडको। डकडको तो किसी ने सुना है क्या? जो टैकी लोग हैं इन्होंने नहीं सुना, जनरली लोग नहीं सुनते। google.com भी देखते हो आप, और उसका बताया कि वो तो आपका टर्म्स एंड कंडीशन पे टिक करवा के सब डेटा लेता है। डकडको क्या करता है? आपकी सर्च हिस्ट्री को या आपके जो भी कुछ देख रहे हो उसको वो ब्लॉक करता ही नहीं है, वो ट्रैकर्स को ब्लॉक करता है, एड्स को ब्लॉक करता है। ब्रेव उसके साथ कनेक्शन, उसके साथ कॉम्बिनेशन में बेस्ट है। तो आपका जो ब्राउजर होता है उसमें आप जाके आपका जो डिफॉल्ट सर्च इंजन होता है उसमें गूगल लिखा होता है ना, उसके बजाय डकडको कर दो और ब्रेव ब्राउजर यूज करो प्लीज।
एड्स भी नहीं आएंगे, एड्स की सबको दिक्कत है, यूट्यूब चलाओगे उस पर एड्स भी नहीं आएंगे। दूसरा होता है आप कुकीज़ को टर्न ऑफ कर दो, आई एक्सेप्ट ऑल कुकीज़, यस, उसके बाद वेबसाइट खत्म, कुछ इसी बारे में बोलते ही नहीं है। कुकीज़ क्या होती है बताओ? कुकीज़ होती है आपकी सेशन आईडी, कि आप एक वेबसाइट पे एंटर कर रहे हो तो आप एक टेम्परेरी टोकन ले रहे हो। सर्कस में जाते हो, सर्कस में जाने से पहले आप एक टोकन लेते हो कि मेरे को ये इसके अंदर जाना है, इतने से इतने टाइम तक ये वैलिड है। तो अगर वो टोकन वहाँ कोई मेरा चोर ले गया तो वो तो मेरे को प्रिटेंड करके अंदर घूमता रहेगा और मेरे पास कुछ है नहीं, तो वो मेरा सारा देख भी गया डेटा और वेबसाइट भी उसने एक्सप्लोर कर ली। तो कुकीज़ है उनको टर्न ऑफ ही कर दो, उनका ज़्यादा कुछ काम नहीं है। वो बेसिकली क्या करता है, आप एक बिना लॉगिन किए आप एक वेबसाइट में, एक शॉपिंग वेबसाइट में आप सर्च कर रहे हो, मेरे को करना है आईफोन, और आईफोन सर्च करोगे तो वो वेबसाइट के पास वो डेटा जा रहा है कुकीज़ के फॉर्म में। तीसरा होता है सिक्योर प्राइवेट कम्युनिकेशन। अभी पिजन ऐप था जो PSNX के अंदर होता है, ये तो आप हर बार कर नहीं सकते, तो कम्युनिकेट करने के लिए भी 5 तरीके होते हैं अलग अलग। पहला प्रोटोन मेल, जीमेल छोड़ दो। हाँ, जीमेल सिक्योर नहीं है, उसको बहुत इजीली हैक कर सकते हैं, उसको बहुत इजीली स्पूफ यानी कि फेक बना सकते हैं। प्रोटोन मेल है, ये स्विस बेस्ड कंपनी है और ये स्विट्जरलैंड के बहुत स्ट्रिक्ट प्राइवेसी लॉज हैं, मतलब कि आपका डेटा एनक्रिप्टेड है, वो भी एक्सेस नहीं कर सकते, उनके सर्वर पे भी नहीं है। कुछ केसेस में जैसे कि इंटरपोल या फिर कुछ बड़े केस आ जाते हैं, जैसे कि आपने एनोनिमस हैकिंग ग्रुप का सुना होगा, वो है एक हैक्टिविस्ट ग्रुप। हैक्टिविस्ट मतलब वो काम तो कर रहे हैं कि लोगों का भला करने के लिए, लेकिन वो एक जो लीगल बाउंड्री होते हैं ना, उसको वो क्रॉस कर देते हैं। तो उनकी डिटेल्स एक बार प्रोटोन मेल ने डिस्क्लोज करी थी, इसलिए आप VPN यूज कर सकते हो, तो वो आप सिक्योर होगे वहाँ पे। प्रोटोन VPN कुछ हद तक VPN है, आपको फिर वो खरीदना पड़ेगा। फ्री का आप ट्रस्ट करो नहीं, फ्री आप करोगे इसलिए करते हैं, एक बार आपका क्लिकबेट हो गया, आपके पास आपका डेटा उनके पास चला गया, तो फ्री तो आप करो ही मत। वो जो लिमिट तक करते हैं ना, वो भी जैसे मैंने आपको बताया विंड क्रैक, वो आप देखो एक बार जाके एक्सप्लोर करो, वो काफ़ी अच्छा VPN है। दूसरा सिग्नल मैसेजिंग ऐप, व्हाट्सएप यूज करते हो? नहीं, बहुत ही डेंजरस है। व्हाट्सएप पे तो ये सब कुछ स्कैम्स वगैरह होते हैं, आपको कॉल्स वगैरह आते हैं कि आपके पास जज या किसी पुलिस कर्मी की आपके पास वीडियो कॉल आती है, तो कैसे आपका नंबर ही उनके पास है। तो सिग्नल में क्या करते हैं, उसमें नंबर लॉग नहीं करता, वो अलग से यूजर ID बनते हैं और वो मेटा डेटा को स्टोर नहीं करता। मेटा डेटा मतलब कि जो ऐप के अंदर का डेटा है पूरी एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है। जो मैं आपको भी ये बुला के बताया अमीन शेयर के बारे में कि प्राइवेट की पब्लिक की, तो वो दोनों के पास है। नेक्स्ट आता है कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए SMS यूज करना। ये भी आपको पता है कि SMS के थ्रू ही कई सारे आपके पास आते हैं कि चलो जी आज तो आपको ना 25,000 दिन का कमाने का मौका मिला है, तो SMS पे ही आते हैं ना। उस पर अगर कोई आप मान लो आप हॉटस्टार पे या फिर नेटफ्लिक्स पे आपको लॉगिन करना है और वहाँ पे OTP के फॉर्म में आपके पास आता है कि आप ये डालो तो लॉगिन हो जाओगे, लेकिन नेटफ्लिक्स के सर्वर पे कोई बैठा हो और उसने मेरे को लॉगिन भेज दी तो मतलब OTP, उसके बाद वो अपने सर्वर पे ले जाएगा मेरा डेटा और मेरा अकाउंट उसके पास, यानी कि अकाउंट हाईजैकिंग। SMS एक बहुत ही क्रूशियल फैक्टर है, आपको पता है। चौथा, प्रोटेक्ट योर आइडेंटिटी, VPN यूज़ करो, प्राइवेट वाला नहीं, जो ट्रस्टेड है। दूसरा, tor ब्राउजर यूज़ करो, मोर प्राइवेट है, इसमें स्पीड आपकी गिर जाएगी। आपको पता है इतना सारा डेटा ट्रैवल करेगा पूरी दुनिया में, तो टाइम तो लगेगा ना, थोड़ी मतलब स्पीड कम होगी डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट। और बर्नर ईमेल्स और फ़ोन नंबर, टेम्प मेल आप यूज़ करते होंगे कि आपको अगर कभी 1-2 चीज़ों के लिए आप एक वेबसाइट यूज़ करते हो, तो टेम्प मेल नाम से एक वेबसाइट आती है, उस पर आप जाओ, वो टेम्प्रेरी आपको ईमेल दे देगा, उससे रजिस्टर कर लो, वो आपका डेटा भी लॉग नहीं करेगा। टेम्प्रेरी फ़ोन नंबर आप यूज़ कर सकते हो कि आप कंफर्टेबल नहीं हो अपना नंबर शेयर करने में। अपना फाइनेंशियल प्राइवेसी, निशान वाली स्टोरी, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, तो ये सब सिक्योर है, मतलब 100% क्रिप्टो करेंसी सिक्योर है।
रिवर्सिबल मतलब आपको पता है क्रिप्टो करेंसी का पूरा कैसे ये चलता है? हाँ, ब्लॉकचेन। तो ये चेन का मतलब कि आप ये चेंज देख सकते हो ना, क्रिप्टो करेंसी एक ऐसे टॉपिक पे बने डिसेंट्रलाइज्ड, उस पर मैं आगे आऊँगा। तो ये देखो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, यूज क्रिप्टो करेंसी स्टैंड ऑफ रेगुलर ट्रांजैक्शन फॉर बेटर एनोनिमिटी है, लेकिन कुछ बेस करने होते हैं तब जाके पूरी एनोनिमिटी मिलती है। दूसरा ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड। अभी जो आप कह रहे थे वो काफ़ी सही था। डिसेंट्रलाइज का मतलब ये कोई सिंगल एंटिटी इसको कंट्रोल नहीं कर रही कि आप जो ट्रांजैक्शन कर रहे हो ना, आप कह रहे हो कि इरिवर्सिबल है, वो है, लेकिन ये ऐसा है कि आप देख सकते हो कि किसने किसको ट्रांजैक्शन करी। अगर मैं अपने टीम मेंबर में निशांत को एक दे रहा हूँ अपने क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट, हाँ, तो वॉलेट एड्रेस दिखता है, तो वॉलेट एड्रेस तो मतलब सब देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं मैंने कहाँ कहाँ ट्रांजेक्शन किया, तो सिक्योर कैसे हुआ? मेरा सारा डेटा तो पब्लिक है। तो इस पर भी करने का पॉइंट है, जैसे बिटकॉइन है, सबको यही पता कि यही क्रिप्टो करेंसी है, यही चलती है सबसे ज़्यादा, ये सिक्योर है लेकिन कुछ हद तक, इससे भी ज़्यादा यूज़ करते हैं मोनेरो। तो मोनेरो को आप अगर क्रिप्टो करेंसी में यूज़ करो तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। टम्बलर्स एंड मिक्सर्स, तो मान लो मैं एक दोस्त को पेमेंट कर रहा हूँ इलीगल वे में, मेरे को खरीदना है ड्रग्स, और अगर मैंने क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट करी मेरे दोस्त को, तो मतलब कि आप सब देख सकते हो क्रिप्टो करेंसी पे सारा मेरा वॉलेट एड्रेस जाता है ना, वॉलेट एड्रेस आप देख सकते हो कि मैंने किसको पेमेंट करी, किस पर्पज़ के लिए करी। तो क्या हो अगर बीच में मैं एक और बंदा ला दूँ, मैं जो मेरे दोस्त को मैं बोल देता हूँ निशांत है, जैसे निशांत को मैं दे रहा हूँ पैसे ये इलीगल कामों के लिए, ड्रग्स गन्स वगैरह ये सब के लिए, लेकिन आप ये देख सकते हो कि उसको आप देख सकते हो मेरी पेमेंट मेरी वॉलेट एड्रेस को बीच में भी कट हो जाती है वीडियो, सबको देखते हैं भाई, सबको देखते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब ये सब कुछ सब देख सकते हैं इसको। तो बीच में अगर मैं एक और प्लेटफॉर्म ला दूँ जो एक काम करेगा, मान लो मैंने दे दिए पीयूष को मेरे पैसे कि वो आगे निशांत को फॉरवर्ड करेगा, तो पता नहीं चला कि मैंने उसको पैसे दिया। अब पीयूष भी बीच में क्या करेगा, पीयूष मैंने दिए उसको $100, तो $20 के वो कोई स्टॉक्स खरीद लेगा, $50 का वो कोई बॉन्ड्स खरीद लेगा, बाकी के पैसों को इधर उधर से करके वो उसको सेल वगैरह करके आगे निशांत को दे देगा। तो कैसे पता चलो भाई मैंने तो पीयूष को दिया पेमेंट और पीयूष ने आगे उसको दिया वो स्टॉक्स वगैरह के फॉर्म में और बाकी फॉर्म में, तो ये तो बीच में से गायब ही होगा ना कि आप तो मेरी ट्रेस ही नहीं कर सकते, पब्लिक है। लेकिन ये टम्बलर्स और मिक्सर्स काफ़ी अच्छे हैं नेट पे, डार्क वेब पे जाओगे। हाँ जी, क्रिप्टो ब्रोकर्स नहीं, टम्बलर्स मिक्सर। एस्क्रो अकाउंट पता है? एस्क्रो अकाउंट होता है कि एक बीच में मीडिएटर है। अगर मैं डार्क वेब पे सर्विसेज दे रहा हूँ, इलीगल सर्विसेज, तो सबसे पहले क्या करेगा, मैं एस्क्रो अकाउंट को पैसे दूंगा अनटिल एंड अनलेस जब तक मेरे को और उसको सर्विस प्रोवाइडर को पूरी वेरिफिकेशन मिल जाती है कि मैंने पैसे दे दिए और उसने मेरे को सर्विस दे दी, तो फिर वो पूरी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है। तो ये होता है एस्क्रो अकाउंट। टम्बलर्स एंड मिक्सर वो उस पैसे को घुमाते हैं, वाइट वॉश करना और फिर आगे फॉरवर्ड करना। हवाला का पैसा यार, हवाला कैसे करते हैं? तो पेमेंट्स बैंक मैनेज करती है, बीच में मीडिएटर, क्या पता कोई बैठा हो, सेफ तो है नहीं, सेंट्रलाइज्ड है, बैंक सब कुछ देख रहा है, तो मैं नहीं चाहता कि भाई बैंक मेरा देखे, तो उसके लिए क्या करते हैं, इसलिए बैंक्स हेट करते हैं क्रिप्टो करेंसी को, क्योंकि सारा डिसेंट्रलाइज्ड है, बैंक्स का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। इसलिए क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड है, नॉट कंट्रोल्ड बाय वन एंटिटी, डिसेंट्रलाइज्ड पीयर टू पीयर स्ट्रक्चर, वॉलेट एड्रेस सबके आपस में कनेक्टेड है। और हाउ इज पॉसिबल? ब्लॉकचेन। अगर मैं एक अकाउंट मेरा बना रहा हूँ, एक ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, तो वो ब्लॉक फॉर्म में हो जाता है, वो ब्लॉक फिर आगे कनेक्ट होता है, पीयर टू पीयर स्ट्रक्चर। तो माइनर्स MINERs, तो निशान ने आपको बताया कि कैसे माइनिंग करते हैं क्रिप्टो करेंसी को, हम माइन करके खुद के लिए मतलब ले सकते हैं। काफ़ी लेंथी प्रोसेस होता है, आपको बहुत कुछ हैशेस वगैरह सॉल्व करने होते हैं, लेकिन ये पॉसिबल है कि आप माइन कर सकते हो। ब्लॉकचेन है, पब्लिक लेजर है, रिकॉर्ड्स, आपके वॉलेट एड्रेस ट्रैक होते रहते हैं। प्रोज डिसेंट्रलाइज है, प्राइवेट है।
कॉन्स जो पब्लिक है, ट्रांजैक्शन दिखती है और पब्लिक बैलेंस है, सब कुछ दिखेगा। तो की टेक अवे फ्रॉम द सेशन, पीयूष, निशांत, तो शुरू से लेके एंड तक आपने क्या क्या सीखा साइबर अवेयरनेस के बारे में? एथिकल हैकिंग प्रैक्टिसेस, avoiding digital footprints, beware of फिशिंग के बारे में आपको बताया, फिशिंग का वो जो पार्ट था, वेरीफाई बिफोर क्लिकिंग ये बताया आपको, यूज एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन टोर यूज कर सकते हो, सिग्नल मैसेजिंग ऐप आप वो यूज कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मेथड्स, बर्नर ईमेल्स, बर्नर फोन्स, जिमी जोंग का लेसन, प्राइवेसी मिस्टेक्स, बिग रिस्क, डार्क वेब मिथ्स, डार्क वेब कुछ नहीं होता, अनएडॉप्टिंग प्रोटोकॉल होता है, टोर नेटवर्क होता है, टोर इज नॉट इक्वल टू फुल एनोनिमिटी, आपको VPN यूज करोगे तो आपको मिलेगी, एग्जिट नोट रिस्क, वही अगर गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर रखे है तो आपको मतलब वो हैक कर सकते हैं, आपका डेटा देख सकते हैं, VPN प्लस टोर प्लस टेल्स, ब्रह्मास्त्र, सिक्योर ब्राउजिंग, कुकीज को टर्न ऑफ कर दो, डब्ल्यू यूज करो, किसके साथ, ब्रेव के साथ, और फाइनेंशियल प्राइवेसी, क्रिप्टो यूज करो, और मिक्सर्स बीच में टम्बलर से जो पैसे घुमाते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में आपको क्या क्या दिखेगा, हाउ डू हैकर्स हैक योर इंस्टाग्राम और एनी सोशल मीडिया आईडी, ये आपको जानने को मिलेगा नेक्स्ट सेशन में। उससे नेक्स्ट सेशन में व्हाट टाइप ऑफ पनिशमेंट्स आर देयर अकॉर्डिंग टू साइबर क्राइम इंडिया, वो जो मैंने बताया था 10 साल, उससे भी ज़्यादा स्क्रिप्ट सिर्फ वो ही नहीं है, मतलब स्ट्रिक्ट, हाउ टू इन्वेस्टिगेट क्रिमिनल्स, कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसका भी एक पार्ट है, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, ये आप लिख सकते हो, वेब पे जाकर आप इसके बारे में सर्च कर सकते हो। थैंक यू। Everyone, we shall have another session on 21st March, and we will be having expert from the industries, and they will be guiding us in this particular journey. So आज I guess this is the right platform. They have set the stage for you people. थोड़ा सा आपको idea हो गया है. Unfortunately, we had some network issue today. Otherwise, Anuj was about to show you certain things, how dark web work and what are different things available on the dark web, how people, they can hire hackers, they can hire criminals, they can do certain things on the dark web. So maybe in the upcoming sessions, we will keep that in a video format to avoid any such issue. तो ये आज थोड़ा सा technical glitch हमसे हुआ है. Next time we'll try to be more practical than this theory. Next time हम लोग कोशिश करेंगे कि we'll show you certain ways through which you can do that and to avoid all these things, right? 21st March जो है प्लीज आप नोट डाउन करें, उसके लिए आपको रजिस्टर कराना होगा. We shall have a workshop and 2 industrial person will be coming for that. आप उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं. फुल डे वर्कशॉप का आपको उसके लिए सर्टिफिकेट भी मिलेगा, आपकी अटेंडेंस भी आपको मिलेंगी अगैन. एंड 21st March everyone, right? And now we shall go for it's time for the quiz. Thank you, ma'am. Thanks for being a wonderful audience today. I hope you all learned something valuable from this session. But before we wrap up, let's test your knowledge with a quick quiz. Please note the following guidelines for the quiz. हाँ, अब वैसे क्विज का टाइम आ गया है, तो ठीक है यार, थोड़ा सा सेशन ऐसे थोड़ा बोरिंग लग सकता है, बट अभी जिसको चॉकलेट नहीं मिली है उसको चॉकलेट लेने का काफी अच्छा मौका है. तो हाँ, क्विज के आप आंसर दीजिए और चॉकलेट लेके जाइए, ठीक है? तो वैसे क्विज के रूल क्या रहेंगे, आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्प्ले होंगे, ठीक है? तो क्या होगा, अगर आप क्वेश्चंस को मतलब बार बार ठीक करते हो, लगातार जैसे कि ठीक करते जाते हो, so some bonus points will add into that score. Okay, so you have to attend the quiz which comes into your WhatsApp group. Okay,
WhatsApp group would like there is a QR for the quiz. So please enjoy this 5-minute quiz. एग्जिट करो मैं माइनस में गया Please don't discuss with your friends, do it on your own. How can companies protect sensitive data included by website encrypts and traffic. आपके पास वैसे सिर्फ 2 मिनट और है और 2 मिनट के बाद हम फिर क्विज बंद कर देंगे. सो जल्दी जल्दी आप क्वेश्चंस का आंसर दीजिए एंड गेट अ प्राइज देन. Please don't do that. Ethical hacking सीखने आए हो, ethical काम भी करने पड़ेंगे ना इसके लिए. So our quiz ended here. उधर बंद कर दीजिए. तो हाँ, हम अब लीडर बोर्ड को देखते हैं. तो फर्स्ट है हर्ष. Where is Harsh? Let's make a huge round of applause for him. Okay,
आगे आ जाओ वापस से। सेकंड इज नॉर्मल। हु इज दिस? नॉर्मल। आप आगे आ जाइए स्टेज पे। हाँ, यूजर आईडी आप दिखा दीजिए, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज प्रिया। कोई खबर को नाम नहीं दे। चॉकलेट खातर कब लग रहा है? Please make a huge round of applause for him. थैंक यू वैसे आप सभी के टाइम के लिए। अगली बार से सेशन थोड़ा और ज्यादा इंटरेक्टिव रखेंगे। अब की बार जैसे मैडम ने भी बताया कि थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट हो गया था, तो इसकी वजह से हल्का हल्का बोरिंग हो गया, मुझे बताया। तो अगली बार से हम इन चीजों का वैसे खास ध्यान रखेंगे और सेशन को जितना ज्यादा हो सके उतना इंटरेक्टिव बनाने की हम कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। We have planned something exciting for you. Guess what? A treasure hunt. So here is a quick challenge to get you started. भाई पेन ड्राइव चाहिए तो थोड़ा तो वेट करना पड़ेगा यार। So what is the most important tool used in cyber security to search for vulnerabilities such as open ports for network security? देख लो आंसर क्या होता है, उसके बाद आपको ऐसे Guys, please be silent. सिर्फ सभी लोग अपना हाथ रेज कीजिए, हैंड रेज कीजिए जिसको पता है। And if you answer that correctly, you will know exactly what to do with the answer. You have 1 hour to find the hidden hint and complete the challenge. It's a treasure hunt for you. जिसने भी पहले जाके वो चीज ढूंढ ली तो हाँ उसको पेन ड्राइव मिल जाएगी। You have only 1 hour for that thing. तो अब आप जा सकते हो और हाँ आप ढूंढ सकते हो। Once again, thank you all for being here today. Let's learn, secure, and the digital world together as a cyber.